بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہیمن فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور آج ہم عمر بیل ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ ریڈ کرنے والے ہیں۔ چلیے جلدی سے شروع کر لیتے ہیں۔ مجھے عمر سے محبت تھی، ویسی ہی محبت جیسی آپ کرتے ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ وہ آپ کا دوست ہے اور میری محبت میرے لیے کسی زمانے میں وہ سب سے اہم شخص تھا، اتنا اہم کہ میں اس کے کہنے کر سکتی تھی۔ تب مجھے یہ غلط فہمی تھی کہ شاید میری محبت یک طرفہ نہیں ہے، عمر بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس نے بت بنے جنید کو دیکھا اور سر جھکا لیا۔ اس نے اپنی کافی میں 1 چمچ چینی کا اضافہ کیا اور اپنی بات جاری رکھی۔ ایسا نہیں تھا، اسے مجھ سے محبت نہیں تھی، اسے مجھ میں دلچسپی تک نہیں تھی۔ اس کے نزدیک میں ایک امیچور، ایموشنل، احمق کزن تھی۔ اس نے مجھے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں سمجھا، یا پھر شاید یہ جرأت تھی جس کی جگہ اس نے مجھے کبھی نہیں دی۔ میں نے اسے نانو کے ذریعے پرپوز کیا تھا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ یہ میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ ہم دونوں کے درمیان پھر سب کچھ ختم ہو گیا، صرف تلخی رہ گئی۔ اس نے زندگی میں کبھی بھی مجھ سے سچ نہیں بولا، کبھی نہیں۔ ہمیشہ جھوٹ ہوتا تھا اس کی زبان پر۔ ہر چیز، ہر حقیقت کو اس نے مجھ سے چھپایا، مگر مجھے سب کچھ پتہ چلتا گیا۔ کچھ وقت لگا، مگر میں اس کو بہت اچھی طرح جانتی گئی۔ اس لیے ناپسند کرتی ہوں میں عمر کو، اس لیے نہیں کہ اس نے میرے پرپوزل کو ٹھکرا دیا۔ شاید شروع میں یہی وجہ ہو، مگر بعد میں اس کی اصلیت تھی جس نے مجھے اس سے برگشتہ کیا۔ وہ میرا پرپوزل قبول کر لیتا تو بھی میرے لیے عمر کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا۔ میں کسی منافق اور دوغلے آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی، اور جو آدمی بے رحم، خود غرض اور ظالم بھی ہو، اس کے ساتھ تو۔ آپ کو عمر کے بارے میں نے یہ سب کچھ نہیں بتایا، کیونکہ مجھے آپ کے اور عمر کے تعلق کا پتہ نہیں تھا، ورنہ میں یہ سب کچھ آپ کو بہت پہلے بتا دیتی۔ ہم جس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں اس طرح کی پسندیدگی اور بریک اپس بہت عام ہیں۔ کوئی بھی شادی کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں اٹھا کر دوسرے پارٹنر کے سامنے نہیں رکھتا، نہ ہی ایسی چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھتا ہے۔ میرے لیے بھی یہ ایک بہت عام بات تھی، لیکن اب جب مجھے آپ کے اور عمر کے تعلق کا پتہ چل چکا ہے تو پھر آپ کو بھی میرے اور عمر کے بارے میں سب کچھ پتہ ہونا چاہیے۔ سب کچھ۔ میں اسے پسند کرتی تھی، میں نے اسے شادی کرنے کی کوشش کی، میں ناکام رہی، اور میں اب اس سے محبت نہیں کرتی ہوں۔ میں شاید اب اس سے نفرت بھی نہیں کرتی ہوں۔ مگر ابھی تک دوبارہ شادی کی تاریخ کے بارے میں کچھ طے نہیں ہوا۔ اب آپ خود یہ طے کر لیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ وہ کافی کا آخری سپ لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جنید ہلا تک نہیں، کسی مجسمے کی طرح وہ دم بخود وہاں بیٹھا تھا۔ علیزہ مزید کچھ کہے بغیر رہ گئی۔ جنید کا ذہن آندھیوں کی زد میں آیا ہوا تھا۔ عمر جہانگیر، اس نے یہ سب کیوں کیا؟ اس طرح صرف علیزہ نہیں تھی جسے تاریکی میں رکھا گیا تھا، وہ خود بھی اسی طرح اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ جنید نے اپنے احساسات کو شناخت کرنے کی کوشش کی۔ کیا یہ قابل یقین تھا کہ وہ عمر جہانگیر علیزہ کے بارے میں یہ جاننے کے باوجود کوئی خاص گوشہ نہیں رکھتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی تھی؟ کیا وہ واقعی جورت سے محبت کرتا تھا؟ اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا عمر سے بات کرنی چاہیے تھی؟ کیا جورت سے بات کرنی چاہیے تھی؟ وہ اس طریقے سے نکلنا چاہتا تھا جس میں عمر اسے رکھ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے احساسات کو ٹٹولنے اور پہچاننے کی کوشش کی۔ غصہ، غصہ، غصہ۔ وہ زندگی میں کبھی اتنا مشتعل نہیں ہوا تھا۔ 9:10 AM۔ عمر نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں میں برش کیا۔ اس نے کل رات کو بال کٹوائے تھے۔ پولیس فورس میں آنے سے پہلے تک وہ سال میں کئی بار ہیئر سٹائل تبدیل کرنے کا شوقین تھا۔ 10 سال پہلے سول سروس جوائن کرنے کے بعد اگرچہ یہ شوق کچھ کم ہو گیا، مگر ختم نہیں ہوا۔ سول سروس میں وہ جس حد تک ہیئر کٹ کے بارے میں آزاد روی کا مظاہرہ کر سکتا تھا، اس نے کیا، مگر پولیس سروس میں آ کر یہ شوق یکدم ختم ہو گیا۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے معمولی سی تبدیلی کریو کٹ کو ہی اپنائے ہوئے تھا۔ معمولی سی تبدیلیوں کے ساتھ یو کٹ کو ہی اپنائے ہوئے تھا۔ کل رات بھی اس نے بالوں کو اسی انداز میں ترشوایا تھا۔ 2-4 بار بالوں میں برش کرنے کے بعد اس نے برش ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا اور پرفیوم اٹھا کر اپنے اوپر سپرے کرنے لگا۔ سپرے کرتے ہوئے اپنی گردن پر نظر آنے والے چند سرخ نشانات نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ پرفیوم ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے گردن اوپر کر کے اپنے کالر کو کچھ کھولتے ہوئے ان نشانات کو دیکھا۔
कल शाम को गोल्फ खेलते हुए उसे इस जगह पर अचानक जलन और खारिश हुई थी। यकीनन किसी कीड़े ने उसे काटा था। रात की निस्बत वो अब कुछ मासूम होने लगे थे। उसने कुछ मुतमईन होते हुए अपने कॉलर को एक बार फिर दुरुस्त किया, फिर पलटकर अपने बेड की तरफ गया और बेड साइड टेबल पर पड़ी हुई रिस्ट वॉच उठाकर अपनी कलाई पर बांधने लगा। रिस्ट वॉच बांधने के बाद उसने बेड साइड टेबल पर पड़ा हुआ अपना मोबाइल, सिगरेट केस और लाइटर उठाया। ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर उसने इन चीजों को टेबल पर रखा और स्टैंड पर लटकी कैप उतारकर पहनने लगा। कैप पहनकर उसने एक आखिरी नजर आईने में अपने ऊपर डाली, फिर मुतमईन होते हुए उसने मोबाइल, सिगरेट केस और लाइटर को उठा लिया। फिर जैसे उसे कुछ याद आया, वो वापस साइड टेबल की तरफ गया। इस बार उसने दराज खोलकर उसके अंदर मौजूद वॉलेट निकाला और उसे अपनी जेब में डाल लिया। उसके बाद उसकी नजर उस किताब पर पड़ी जिसे वो रात को सोने से पहले पढ़ रहा था। किताब को उसने औंधा करके खुली हालत में बेड साइड टेबल पर रखा हुआ था। उसे हैरत हुई, वो आमतौर पर किताबें कभी भी इस तरह नहीं रखता था। फिर उसे याद आया, रात को वो ये किताब पढ़ रहा था जब जोरत की कॉल आई थी। उसने फोन पर उससे बात करते करते कुछ बेध्यानी के आलम में किताब को बुक मार्क करके बंद करने की बजाय उसी तरह साइड टेबल पर रख दिया। वो जोरत से बात खत्म करने के बाद दोबारा उस किताब को पढ़ना चाह रहा था, मगर जोरत से उसकी बात बहुत लंबी हो गई और उसने जिस वक्त फोन बंद किया उस वक्त उमर को नींद आने लगी थी। वो किताब की तरफ मुतवज्जा हुए बगैर ही सो गया था। उसने किताब उठाई और साइड टेबल पर रखा हुआ बुक मार्क उठाकर उसके अंदर रखा, फिर उसे बंद कर दिया। किताब को वापस साइड टेबल पर रखने की बजाय वो किताबों को उसके शेल्फ की तरफ भर गया और उसने किताब को उस शेल्फ में रख दिया। अगले कुछ दिन उसे इतने काम करने थे कि उसे तवक्का नहीं थी कि वो इस किताब को पढ़ने के लिए अब वक्त निकाल सकेगा। कुछ दिनों तक अपने काम निपटाने के बाद उसे अपना सामान पैक करवाना था और फिर उसे लाहौर भिजवा देना था और उसके बाद उसे लाहौर से अमेरिका जाने की तैयारियों में मसरूफ हो जाना था। इस किताब को वो अब शायद अमेरिका जाकर ही पढ़ने की फुर्सत निकाल पाता, वो भी उस सूरत अगर वो उसके जहन में रहती और वो उसे अमेरिका साथ ले जाता, वरना अगले कुछ सालों तक वो किताबें गरैनी की एनेक्सी में ही पड़ी रहनी थी। वो अमेरिका जाने से पहले अपने सामान को एक बार फिर वहीं रखवाना चाहता था। वो सोच रहा था, उसने जोरत को रात को अपनी अमेरिका वापसी के बारे में बता दिया था। वो बेइख्तियार चिल्लाई थी, तो बिल आखिर तुम वापिस आ रहे हो? हाँ, बिल आखिर। उमर उसके जोशो खरोश पर मुस्कुराया। कब तक रहोगे यहाँ? इस महीने के आखिर तक। कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उसे रात को जोरत से होने वाली अपनी गुफ्तगू याद आने लगी। 9:20 AM। उसे अपने कमरे से नमूदार होते देखकर मुलाजिम तेजी से उसके कमरे की तरफ चला आया। उमर के पास आकर उसने मुअद्दब अंदाज में उसे सलाम किया। उमर ने गर्दन को हल्का सा खम देते हुए उसके सलाम का जवाब दिया और फिर सीधा डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया, जबकि मुलाजिम एक आनकी अंदाज में उसके बेडरूम की तरफ चला गया। ये रोजाना का मामूल था। उमर को अपने कमरे से बाहर आता देखते ही मुलाजिम उसके बेडरूम में चला जाता और फिर वहां पड़ा हुआ उमर का ब्रीफ केस और स्टिक उठाकर उसकी गाड़ी में जाकर रखा था। उमर खासतौर पर 9 बजे तक घर से निकल जाता था, मगर आज वो कदरे लेट था। डाइनिंग टेबल के पास खड़े दूसरे मुलाजिम ने भी उसे देखकर सलाम किया और फिर उसके लिए कुर्सी खींचने लगा। नाश्ता पहले ही डाइनिंग टेबल पर मौजूद था। उमर ने अपने हाथ में पकड़ी चीजें टेबल पर रखी और फिर कुर्सी पर बैठने के बाद अपनी कैप भी उतारकर टेबल पर रख दी। मुलाजिम जान चुका था वो आज नाश्ता करने में कुछ वक्त लगाएगा। आमतौर पर वो जब भी कैप नहीं उतारता था, वो ज्यादा से ज्यादा एक स्लाइस चाय के एक कप के साथ खाता और 5 मिनट के अंदर नाश्ते की टेबल से उठ जाता। और जब वो अपनी कैप उतार देता, उस दिन वो नाश्ते में किसी न किसी चीज की फरमाइश जरूर करता और अक्सर 15-20 मिनट लगा देता। सर, ऑफिस से फोन आया है। मुलाजिम ने उसके लिए चाय अंडेलते हुए उसे इतला देना जरूरी समझा। किस लिए? अमन ने भवें उचकाते हुए पूछा। आपके बारे में पूछ रहे थे। मैंने उन्हें बता दिया कि आप आज कुछ देर से आएंगे, मुलाजिम ने कहा। कोई इमरजेंसी तो नहीं थी? नहीं सर, वो ऐसे ही रूटीन में आपके बारे में पूछ रहे थे। उमर ने चाय का कप उठाते हुए सर हिलाया। आज आमलेट बनवाओ, फ्राइड एग नहीं लूंगा, उमर ने टेबल पर एक नजर डालते हुए कहा। जी सर। मुलाजिम मुस्तादी से डाइनिंग रूम से निकल गया। उमर इस वक्त चाय का दूसरा कप पी रहा था जब मुलाजिम आमलेट की प्लेट लिए डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ। शक्ल तो खासी अच्छी लग रही है गफूर, उमर ने प्लेट में मौजूद मशरूम वाले ऑमलेट पर एक नजर डालते हुए मुस्कुराकर कहा। इंशाल्लाह ताला आपको जायका भी अच्छा लगेगा सर, मुलाजिम ने उसके तबसरे के जवाब में कहा और स्लाइस वाली प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई। नहीं, स्लाइस नहीं लूंगा, सिर्फ आमलेट ही खाऊंगा, उमर ने उसे रोक दिया। वो अब छुरी कांटे की मदद से आमलेट के टुकड़े करने में मसरूफ था। रात को केक कस्टर्ड अच्छा बना था, अगर है तो ले आओ, उसने मजीद हदायत दी। जी सर। मुलाजिम एक बार फिर वहां से चला गया। जब वो प्याला लेकर वहां आया तो उमर आमलेट खाने में मसरूफ था।
یہ واقعی ذائقے میں بھی اچھا ہے غفور، تمہارے کھانے دن بدن اچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ عمر نے اسے دیکھ کر کچھ بے تکلفی سے کہا۔ غفور کا چہرہ اپنی تعریف پر چمکنے لگا تھا۔ عمر تعریف میں کبھی کنجوسی نہیں کرتا تھا۔ اس نے اب تک جتنے آفیسرز کے لیے کام کیا تھا اس میں اسے سب سے زیادہ عمر جہانگیر ہی پسند آیا تھا۔ وہ اگرچہ دوسرے آفیسر کی طرح ہی ریزرو رہتا تھا مگر وہ تعریف کرتے ہوئے کبھی تکلف نہیں برتتا تھا۔ وہ ویسے بھی خاصے کھلے دل اور جیب کا مالک تھا۔ اکثر اوقات اسے اور دوسرے ملازمین کو کچھ نہ کچھ دیتا رہتا تھا۔ ملازمین کی چھوٹی موٹی سفارشیں بھی مان لیتا تھا۔ یہ سب چیزیں بہت سے دوسرے آفیسرز میں بھی تھیں مگر غفور کو وہ اس لیے پسند تھا کیونکہ وہ غصے میں بھی ان کی تذلیل کرنے کا عادی نہیں تھا۔ وہ غلطی کرنے پر جھڑکنے میں تعامل نہیں کرتا تھا مگر یہ ڈانٹ ڈپٹ ایسی نہیں ہوتی تھی کہ ان لوگوں کو تذلیل کا احساس ہوتا۔ سر، رات کے لیے کیا بناؤں؟ غفور نے اس سے پوچھا۔ جو چاہے بنا لو، اب تو چند دن مہمان ہیں تمہارے، جو تم چاہو کھلاؤ، مگر رات کو تو شاید میں کھانے پر نہ آ سکوں، بہت دیر سے آؤں گا اور کھانا کھا مگر عین ممکن ہے کہ آ ہی نہ سکوں، مجھے کہیں ادھر ادھر جانا پڑے۔ عمر نے واش بیسن کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں سر، میں پھر بھی کھانا بنا لوں گا، ہو سکتا ہے آپ آ ہی جائیں۔ غفور نے اس کے پیچھے لپکتے ہوئے کہا۔ وہ اب واش بیسن میں کلی کر رہا تھا۔ غفور کی بات کے جواب میں کچھ بھی کہنے کے بجائے وہ خاموش رہا۔ غفور اب ٹاول سٹینڈ سے ٹاول اتار کر اسے دے رہا تھا۔ عمر ہاتھ خشک کرنے کے بعد دوبارہ ٹیبل کی طرف چلا گیا اور کیپ اٹھا کر پہننے لگا۔ غفور نے مستعدی سے موبائل، سگریٹ کیس اور لائٹر ٹیبل سے اٹھا کر عمر کی طرف بڑھا دیا۔ عمر ان چیزوں کو ہاتھ میں لیتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ غفور اس سے پہلے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ دروازے کے پاس موجود قدادم آئینے کے پاس پہنچ کر عمر ایک بار رکا اور اس نے اپنی کیپ پر نظر ڈالی۔ پھر مطمئن ہو کر اس نے دروازے سے باہر قدم رکھ دیا جسے غفور اب کھول چکا تھا۔ خدا حافظ سر، عمر نے اپنی پشت پر روز کی طرح غفور کی آواز سنی۔ 9:30 AM۔ گاڑی کے پاس کھڑے گارڈز نے عمر کو دیکھ کر سیلیوٹ کیا۔ ڈرائیور اب تک فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول چکا تھا۔ عمر نے اپنے ہاتھ میں پکڑی چیزیں ڈیش بورڈ پر رکھیں اور خود اندر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے اس کے اندر بیٹھنے کے بعد دروازہ بند کر دیا۔ دونوں گارڈز بھی جیپ کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئے۔ دور گیٹ پر موجود گارڈ اب گیٹ کھول رہا تھا۔ وہ عمر کو باہر نکلتے اور گاڑی میں بیٹھتے دیکھ چکا تھا۔ ڈرائیور اب اپنی سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ گیٹ پر موجود گارڈز بہت مستعدی کے عالم میں کھڑے تھے۔ عمر کی گاڑی پاس سے گزرنے پر انہوں نے عمر کو سیلیوٹ کیا۔ عمر نے گلوز کمپارٹمنٹ میں موجود اپنے سن گلاسز نکالے اور انہیں آنکھوں پر چڑھا لیا۔ گیٹ کے باہر موجود پولیس کی ایک اور موبائل نے عمر کی گاڑی کے باہر آنے کے بعد اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ عمر کی گاڑی کو اسکورٹ کر رہی تھی۔ سڑک پر اس وقت خاصی ٹریفک تھی۔ عمر نے اپنی گھڑی پر ایک نظر ڈالی۔ وہ جانتا تھا 10 منٹ کے اندر وہ اپنے آفس میں ہوگا۔ اس کے گھر سے اس کے آفس کا فاصلہ صرف 10 منٹ کا تھا۔ وہ تنقیدی نظروں سے سڑک پر چلنے والی ٹریفک کو دیکھتا رہا۔ اکثر گاڑیوں کے ڈرائیور اس کے لیے راستے چھوڑ رہے تھے۔ اسے سڑک پر بجتے ہوئے ہارن کی آواز سے بے حد کوفت ہوتی تھی۔ وہ اس وقت سڑک پر بے تحاشا ہارن بج رہا تھا۔ اس کی اپنی گاڑی کا ڈرائیور چاہتے ہوئے بھی ہارن نہیں بجا رہا تھا۔ عمر جہانگیر کی موجودگی میں کم از کم وہ یہ جرات نہیں کر سکتا تھا۔ اسے آج بھی اچھی طرح یاد تھا جب تقریباً 2 سال پہلے عمر نے وہاں جوائننگ لی تھی۔ اس کے ساتھ پہلے ہی سفر نے اس نے حسب عادت سڑک پر آتے ہی ہارن دیا تھا۔ عمر نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ دوبارہ ہارن مت دینا، کم از کم جب تک میری گاڑی ڈرائیو کر رہے ہو یہ بھول جانا کہ گاڑی میں ہارن نام کی کوئی چیز ہے۔ یا تو گاڑی اتنی تیز اور اچھی چلاؤ کہ ہر طرح کی ٹریفک سے نکل جاؤ یا پھر انتظار کرو۔ پولیس کی گاڑی دیکھ کر لوگ خود ہی کچھ دیر میں راستہ صاف کر دیں گے، اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو انتظار کرو، کبھی نہ کبھی تو راستہ ملے گا، مگر یہ ہارن دوبارہ استعمال نہیں ہونا چاہیے ورنہ میں تمہیں اور ہارن دونوں کو گاڑی سے نکال کر پھینک دوں گا۔ ڈرائیور نے اس کے بعد واقعی کبھی ہارن کا استعمال نہیں کیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے یہ یقین تھا کہ عمر واقعی ایسا ہی کرے گا اور دوسری بار اسے وارننگ نہیں دے گا۔ اپنے آفس کے راستے میں آنے والے واحد چوک پر کھڑے ٹریفک کانسٹیبل نے عمر کی گاڑی کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے سیلیوٹ کیا۔ جبار، آج میری کار کو سروس کے لیے لے جانا، عمر نے اچانک ڈرائیور کو مخاطب کیا۔ وہ اپنی ذاتی گاڑی کی بات کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے سر، کس وقت؟ ڈرائیور نے مستعدی سے کہا۔ میں کچہری میں جب 1-2 گھنٹوں کے لیے جاؤں گا اس وقت تم گاڑی لے جانا، مگر زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹوں میں تمہیں واپس ہونا چاہیے۔ اگر گاڑی کا کوئی لمبا چوڑا کام نکل آیا تو پھر تم اسے وہیں چھوڑ دینا اور خود آ جانا، کیونکہ آج مجھے خاصی جگہوں پر جانا ہے۔ عمر نے اسے مزید ہدایات دی۔ ٹھیک ہے سر، میں 2 گھنٹوں سے پہلے ہی واپس آ جاؤں گا۔ درزی سے میرے کپڑے لے آئے؟ عمر کو اچانک یاد آیا اس نے چند دن پہلے 2 شلوار قمیض سلوانے کے لیے بھجوائے تھے۔ یس سر، وہ تو میں کل شام کو لے آیا تھا۔
अभी गाड़ी में ही पीछे पड़े हैं। मुझे याद नहीं रहा घर में देना। मैं कुछ इमरजेंसी में कल शाम को जल्दी चला गया था। ड्राइवर ने कदरे माजरत ख्वाहाना अंदाज में कहा। हाँ, कैसी है तुम्हारी बीवी अब? उमर को उसकी इमरजेंसी की बात सुनकर याद आया। अब तो बेहतर है सर, हड्डी तो बच गई मगर चोट खासी आई है। मुझे तो कल बड़ी भागदौड़ करनी पड़ी उसके लिए। हॉस्पिटल में है? नहीं सर, घर ले आया था मैं रात को। हॉस्पिटल में रखने की जरूरत नहीं थी। ये कौन सी बीवी है, पहली या दूसरी? उमर जानता था जब्बार की 2 बीवियां थीं। दूसरी शादी उसने चंद माह पहले ही की थी। सर, दूसरी वाली, जब्बार ने जवाब दिया। हाँ, मुझे पहले ही अंदाजा था। यह दूसरी बीवी हो सकती थी जिसके लिए तुम इस राह भागे भागे जा सकते थे। उमर ने तबसरा किया। बैक व्यू मिरर में उसने पीछे बैठे हुए गार्ड्स को आपस में मायने खेज मुस्कुराहटों का तबादला करते देखा। जब्बार उमर की बात पर कुछ झेम गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर जी, मैं तो पहली का भी बहुत ख्याल रखता हूँ, जब्बार ने उमर के तबसरे के जवाब में कहा। ये काबिले यकीन बात तो नहीं है मगर चलो यकीन कर लेता हूँ, उमर ने कदरे शगुफ्तगी से कहा। वो अब एक बार फिर सड़क पर नजर आने वाली ट्रैफिक की तरफ मुतवज्जा हो चुका था। गाड़ी अब उसके ऑफिस के करीब हो गई थी। चंद मिनटों के बाद गाड़ी उसके दफ्तर के कंपाउंड में दाखिल हो रही थी। ऑफिस के अंदर और बाहर उसके अमले में रूटीन की हलचल नजर आने लगी। 9:40 AM। उमर ऑफिस में पहुंचकर मामूल के कामों में मसरूफ हो गया। उसका पीए उसके सामने टेबल के दूसरी तरफ खड़ा था। सर, डीसी साहब की कॉल आई थी आपके आने से चंद मिनट पहले। उन्होंने कहा है कि आप ऑफिस आए तो उनसे बात करवा दूं। कोई इमरजेंसी है? नहीं सर, मेरा ख्याल है कोई इमरजेंसी नहीं है। वो शायद किसी मामले में आपसे बात करना चाहते होंगे। मैंने उनके पीए से इस बारे में पूछा था मगर खुद उसे भी कोई अंदाजा नहीं था, मगर उसने ये जरूर बताया कि कोई इमरजेंसी नहीं है। पीए ने अपनी राय जाहिर की। कोई और कॉल आई? नो सर, बस उनकी ही कॉल थी। मैं उनसे कुछ देर बाद बात करूंगा, तुम फिलहाल डिक्टेशन के लिए बैठ जाओ, उमर ने उसे कहा। यस सर। पीए मुसादी से बैठ गया। उस फाइल को देखते हुए उसे डिक्टेशन देने लगा। के बाद दीगरे उसने टेबल पर पड़ी हुई 2-3 और फाइल्स को भी देखा और उनके बारे में भी उसे डिक्टेशन दी और साथ साथ कुछ और फाइल्स पर नोट लिखने में भी मसरूफ था। तकरीबन 1 घंटे बाद वो आखिरी डिक्टेशन देकर एक गहरी सांस लेता हुआ खामोश हो गया। ये बस अब मेरी आखिरी डिक्टेशन है। कल मैं शायद ऑफिस ना आऊं और अगर आया भी तो ज्यादा देर के लिए नहीं आऊंगा, उमर ने उससे कहा। मेरा ख्याल है 2-3 दिन तक सऊद हमदानी यहाँ पहुंच ही जाएंगे। अभी अपने कुछ काम निपटा रहे हैं वरना शायद अब तक पहुंच ही गए होते। उसने आने वाले एसपी का नाम लिया। अब मैं मजीद कोई फाइल्स नहीं देखूंगा, सऊद हमदानी ही आकर देखेंगे, खास तौर पर उन केसेस की फाइल्स। उन्हें अच्छी तरह स्टडी की जरूरत है, इसलिए मैं उन्हें छोड़ रहा हूँ। अब इन 2-3 दिनों में मेरे कुछ विजिट्स अरेंज कर दो, उमर ने कुछ जगहों के नाम लेते हुए कहा। ये अपनी नोटबुक में नोट्स लेते हुए यस सर की तकरार करता गया। 10:50 AM। मेज पर पड़ा फोन अचानक बजने लगा। उमर ने गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता करते हुए रिसीवर उठा लिया। सर, डीसी साहब की कॉल है, ऑपरेटर ने उसे बताया। बात करवाओ, उमर ने सामने वाल क्लॉक पर नजर डालते हुए कहा। ठीक है, अब तुम जाओ, उसने रिसीवर कान से लगाए हुए पीए से कहा। वो कमरे से निकल गया। चंद लम्हों के बाद उमर को रिसीवर में सैयद सुल्तान शाह की आवाज सुनाई दी। मैं अभी कुछ देर पहले ही ऑफिस आया हूँ, आपको कॉल करने ही वाला था, उमर ने रस्मी सलाम दुआ के बाद कदरे माजरत ख्वाहाना अंदाज में कहा। कोई बात नहीं, अब तो मैंने कर ही ली है, सैयद सुल्तान ने दोस्ताना अंदाज में कहा। आज रात को क्या कर रहे हो? रात को कुछ खास नहीं, शायद फिर ऑफिस में ही होगा या फिर कहीं पेट्रोलिंग पर। तो बस ठीक है, फिर तुम रात का खाना हमारे साथ खाओ, सैयद सुल्तान ने तय किया। तुम्हारी आंटी मुझे पहले ही कई दिन से कह रही हैं कि तुम्हें खाने पर इनवाइट करूं। आज तुम फिर हमारी तरफ आ जाओ, जाने से पहले हमारे साथ डिनर कर लो, सैयद सुल्तान ने बेतकल्लुफी से कहा। आई एम ऑनर्ड, आप हुक्म करें, मैं हाजिर हो जाऊंगा, उमर ने मुस्कुराते हुए कहा। सैयद सुल्तान जहांगीर माज के दोस्तों में से थे और चंद माह पहले ही उमर के शहर में उनकी पोस्टिंग हुई थी। खैर, हुक्म वाली तो कोई बात नहीं है, हुक्म तुम्हारे बाप को देता हूँ, तुम बाप की तरह ढीठ नहीं हो, मैं जानता हूँ, वैसे ही आ जाओगे, सैयद सुल्तान ने बरजस्तगी से कहा। उमर उनके जुमले पर हंसा। मैं आपके इनविटेशन का पहले ही इंतजार कर रहा था, चाहता था कि जाने से पहले आंटी के हाथ का खाना एक बार खा लूं, सैयद सुल्तान ने उसकी बात काटी। ये तुम्हारे अपने करतूत हैं जिनकी वजह से तुम 1-2 बार से ज्यादा हमारी तरफ नहीं आए। अब तुम किस कदर फॉर्मल होकर अपनी हसरतों का इजहार कर रहे हो। जाने से पहले आंटी के हाथ का खाना एक बार खा लूं। एक बार क्यों, 10 बार खाओ, वह अब उसे अपने मशहूर जमाना अंदाज में झिड़क रहे थे। जी जी, मुझे पता है, मेरी अपनी कोताही है, उमर ने फौरन कहा।
कोई खास डिश बनवानी है तो बता दो, मैं तुम्हारी आंटी से कह दूंगा, सैयद सुल्तान ने ऑफर की। आंटी की हर डिश खास होती है, मैं सब कुछ खुशी से खाऊंगा। ठीक है, फिर 8 बजे होना चाहिए तुम्हें हमारी तरफ। सैयद सुल्तान ने उसे हदायत देते हुए फोन बंद कर दिया। 5:11 AM। उमर ने सिगरेट केस से एक सिगरेट निकालकर सुलगाया। वो इस वक्त अपने ऑफिस में बिल्कुल अकेला था। सिगरेट के कश लगाते हुए वो इन मुकामी अखबारात पर एक नजर डालने लगा जो उसके मेज पर पड़े थे। उसके अमले ने अहम या पुलिस से मुतल्लिका खबरों को हाईलाइट किया हुआ था। इस वजह से उसे तमाम अखबारात का तफसीली मुताला करना नहीं पड़ता था। वो बड़े कौमी अखबारात का मुताला ऑफिस में सुबह आते ही किया करता था, जबकि लोकल अखबारात की बारी दोपहर के करीब आती थी। इस वक्त भी इन अखबारात को देखते हुए उसे अपने बारे में चंद सुर्खियां नजर आईं। उसके पोस्ट आउट होने के हवाले से चंद खबरें लगाई गई थीं और फिर एक मुकामी कालम नवीस ने उसकी पोस्टिंग के दौरान उसकी कारकर्दगी को सराहते हुए उसकी शान में जमीन और आसमान के किलाबे भी मिलाए थे। वो मुस्कुराते हुए कालम को पढ़ता रहा। वो कालम नवीस हर जाने वाले अफसर की तारीफ में उस वक्त तक जमीन आसमान एक किए रखता जब तक कि नया अफसर ना पहुंच जाता, और नए अफसर की आमद के साथ ही वो कालम नवीस पिछले अफसर की बुराइयों की तफसीलात और आने वाले ये कसीदे इकट्ठे ही पढ़ना शुरू कर देता। इस वक्त भी उस कालम को पढ़ते हुए उसे उस शख्स के झूठ और चापलूसी की इंतहा पर हैरानी हो रही थी। उसने वो काम भी उसके खाते ही में डालने की कोशिश की थी जो उसने वहां उस शहर में तो क्या किसी दूसरे शहर की पोस्टिंग में भी कभी नहीं किए थे। वो कालम नवीस कसीदा ख्वानी में कमाल महारत रखता था, या फिर वो कालम भी उसके अमले में से किसी की काविश थी। साहब को जाते जाते खुश करने की एक कोशिश। वो कुछ महजूज होकर सिगरेट के कश लगाते हुए वो कालम पढ़ता रहा। कालम पढ़ने के बाद उसने दूसरी खबरों पर नजरें दौड़ाना शुरू कर दी। एक खैरबाद की तरफ से उसके एजाज में अलविदाई दावत की थी। एक और दावत चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से दी जा रही थी। उसे वकीलों और कारोबारी अफराद से जितनी चिढ़ थी किसी और से नहीं थी, मगर पुलिस सर्विस में उसे सबसे ज्यादा साबका इन्हीं दो तबकात से पड़ता था। 10 मिनट में इन अखबारात का जायजा लेने के बाद उसने उन्हें वापस टेबल पर रख दिया। अपने चपरासी को बुलवा कर उसने गाड़ी तैयार करवाने के लिए कहा। उसे अब कचहरी जाना था। अपने ऑफिस से निकलकर वो बाहर जाने के बजाय पुलिस स्टेशन का राउंड लेने लगा। हमेशा की तरह उसे इस दिन भी बहुत सी चीजों की तरफ अपने अमले की तवज्जो मबजूल करवानी पड़ी। कुछ के यूनिफॉर्म की हालत उतनी ही खस्ता थी जितनी हमेशा होती थी। 10 मिनट में राउंड मुकम्मल किया और बाहर कंपाउंड में निकल आया। उसके गाड़ी में सवार होने के बाद एक बार फिर गार्ड्स और ड्राइवर ने अपनी नशीद संभाल ली थी। उसके ऑफिस से कचहरी तक का फासला 15 मिनट में तय होता था। 4:11:35 AM। कचहरी में मौजूद अपने ऑफिस में पहुंचकर उसने वहां मौजूद कामों को निपटाना शुरू कर दिया। मुलाकातियों की एक लंबी लाइन थी जिसे वहां भुगताना था और हर एक का मसला एक से बढ़कर एक था। पुलिस सर्विस में आकर उसकी पंजाबी में जितनी रवानी आई थी वो पहले कभी नहीं आ सकती थी। फॉरेन सर्विस का जहां था, पुलिस सर्विस की दुनिया और दुनिया थी। मुकामी जुबान से नावाकिफ बड़े से बड़े अफसर को भी बाल दफा बुरी तरह डबोया करती थी। उमर ने पुलिस सर्विस में आने के बाद बहुत जल्दी जुबान का इस तरह का इस्तेमाल सीख लिया था जिस तरह के इस्तेमाल की जरूरत थी। बाकी की फसाहत और बलागत उसके मातहत अमले ने उसे सिखा दी थी। वहां उसे मिलने वालों में ज्यादा तादाद देहातियों या आम शहरियों की थी। वो वहां बैठने के औकात में हमेशा बड़ी तेजी और मुस्तादी से मुलाकातियों को भुगताया करता था। इसके बावजूद वो जब वहां से उठता, ऑफिस के बाहर कॉरिडोर में मौजूद मुलाकातियों की तादाद उतनी ही होती। आज भी वो उसी फुर्ती और मुस्तादी से दरख्वास्तों पर अहकामात जारी कर रहा था। 3:12:40 PM। उसके मोबाइल की बीप बज रही थी। सामने बैठे हुए मुलाकाती से बात करते करते उसने मेज पर पड़ा हुआ मोबाइल हाथ में लेकर कॉलर का नंबर देखा। वो जुनेद था। उसने कॉल रिसीव की। हेलो जुनेद, कैसे हो? उसने जुनेद को मुखातिब करते हुए कहा। फाइन। दूसरी तरफ से जुनेद ने मुख्तसर जवाब दिया। उमर को हैरत हो रही थी। जुनेद आमतौर पर दिन के औकात में उसे ऑफिस में फोन नहीं करता था, और वो भी काम के दौरान। वो रात को उसे फोन किया करता था या फिर शाम को। इस वक्त कैसे कॉल कर लिया तुमने? उमर पूछे बगैर नहीं रह सका। तुम लाहौर कब आ रहे हो? जुनेद ने उसके सवाल का जवाब दिए बगैर कहा। बस 2-3 दिन में। क्यों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उमर को अचानक तशवीश हुई। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ से उसने कहा। फिर तुम रात को मुझे कॉल कर लो या फिर मैं तुम्हें कॉल कर लेता हूँ। नहीं, मैं फोन पर बात नहीं करना चाहता। इस बार जुनेद के अंदाज ने उसे कुछ चौंकाया। फिर? आमने सामने बात करना चाहता हूँ। खैर तो है?
हाँ खैर ही है। किस चीज के बारे में बात करना चाहते हो? बहुत सारी चीजें, ये जब तुम लाहौर पहुंचोगे तभी बताऊंगा। इतना पुरस्कार बनने की क्या जरूरत है? साफ साफ बात करो यार। तुम लाहौर पहुंच जाओ, फिर काफी साफ साफ बातें होंगी। उमर एक लहजा के लिए खामोश रहा। अलीजा ठीक है? उसने पता नहीं क्या जानने की कोशिश की। हाँ बिल्कुल ठीक है। शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? वो भी ठीक चल रही हैं। उमर को कुछ इत्मीनान हुआ। कम अज कम इस बार अलीजा और उसके दरमियान कोई गड़बड़ नहीं थी। हो सकता था कोई और मामला हो। मैं 2-3 दिन तक फारिग होकर लाहौर आ जाऊंगा, फिर इत्मीनान से तुमसे बातचीत होगी, उमर ने उसे कहा। मैं सिर्फ तुम्हारी वापसी के बारे में ही जानना चाहता था। अच्छा फिर मैं करूंगा तुम्हें रात को कॉल, कुछ गपशप रहेगी, अभी ऑफिस में हूँ। उमर ने खुदाहाफिज कहते हुए फोन बंद कर दिया। 1:20 PM। मैं चाय पीने आया हूँ आपके साथ। सामने कुर्सी पर बैठे हुए सेशन जज रिजवान कुरैशी ने उमर से कहा। वो अभी कुछ देर पहले ही उसके कमरे में आया था। उसका ऑफिस उमर के ऑफिस से कुछ फासले पर था और वो वक्तन फवक्तन उमर के दफ्तर आता जाता रहता। दोनों चाय अक्सर साथ ही पीते। उमर ने उसकी बात के जवाब में कुछ कहने के बजाय घंटी बजाकर अदली को बुलवाया और चाय लाने के लिए कहा। चलें आज आखिरी बार आपको चाय पिलवा देते हैं, इसके बाद तो फिर मौका नहीं आएगा, उमर ने अर्दली के जाने के बाद रिजवान कुरैशी से कहा। क्यों, अभी तो आप चंद दिन और हैं यहाँ। हाँ मगर यहाँ कचहरी में आज मेरा आखिरी दिन है। परसों सऊद हमदानी चार्ज ले रहे हैं, कल मैं यहाँ नहीं आऊंगा। कुछ कर्टिसी क्वाइल्स में मसरूफ रहूंगा, उमर ने तफसील बताई। बहुत अच्छा वक्त गुजरा उमर जहांगीर साहब आपके साथ, अच्छी गपशप हो जाती थी। हाँ मगर 10-15 मिनट की, उमर ने मुस्कुरा कर कहा। चलें 10-15 मिनट ही सही, मगर अच्छा टाइम गुजरता था। रिजवान कुरैशी भी मुस्कुराया। इसमें कोई शक नहीं, उमर ने सर हिलाते हुए टेबल पर पड़ी हुई चीजों को समेटना शुरू कर दिया। लाहौर जाने से पहले मेरी तरफ एक चक्कर लगाएं, खाना खाते हैं इकट्ठे, रिजवान कुरैशी ने ऑफर की। जरूर, क्यों नहीं, मगर खाना खाना जरा मुश्किल है। इन 2-3 दिन के लिए खासी कमिटमेंट्स हो चुकी हैं मेरी, मगर जो कुछ ऑफिशियल फेयरवेल और डिनर्स हो रहे हैं उसमें तो आप भी इनवाइटेड होंगे। इकट्ठा खाने का मौका तो वहां भी मिल जाएगा, उमर जहांगीर ने कहा। ऑफिशियल डिनर में और घर पर होने वाली दावत में बड़ा फर्क होता है। फिर कभी सही रिजवान साहब, बाद में मुलाकात तो रहेगी आपसे, उमर ने कहा। कहाँ मेल मुलाकात रहेगी, आप तो फौरी छुट्टी पर बैरून मुल्क जा रहे हैं, रिजवान कुरैशी ने याद दहानी करवाई। हाँ मगर पाकिस्तान आता जाता रहूंगा और फिर दोबारा ज्वाइन तो करना ही है। तब क्या पता हम कहाँ हों, आप कहाँ हों। जहां भी होगा मैं आपसे राब्ता रखूंगा, उमर ने कहा। अगले 15 मिनट उसने रिजवान कुरैशी के साथ चाय और सिगरेट पीते हुए गुजारे। फिर रिजवान कुरैशी बड़ी गर्मजोशी के साथ उससे मिलकर ऑफिस से निकल गया। उसके जाने के बाद उमर ने अगले 15 मिनट वहां मौजूद अमले के साथ अलविदाई बातचीत की। अपने ऑफिस में मौजूद अपनी चीजों को वो पहले ही अपनी गाड़ी में भिजवा चुका था। 1:50 PM। कचहरी में मौजूद अपने ऑफिस से निकलकर वो दोबारा अपनी गाड़ी में आ बैठा। जब्बार गाड़ी चलाते हुए दोबारा उसे मेन रोड पर ले आया। उमर ने एक बार फिर सन ग्लासेस लगा लिए थे। कार सर्विस करवा ली है मेरी, उमर ने जब्बार से पूछा। जी सर, मैं करवा कर घर छोड़ आया हूँ। किसी खराबी वगैरह के बारे में कहा तो नहीं मैकेनिक ने? नहीं सर, गाड़ी बिल्कुल ठीक है, उसने चेक की थी अच्छी तरह। वो सर हिलाते हुए बाहर देखने लगा। फिर अचानक एक ख्याल आने पर उसने कहा, रास्ते में से सिगरेट का पैकेट लेना है। जी सर, ड्राइवर ने कहा। चंद मिनटों के बाद उसने रास्ते में नजर आने वाली एक मार्केट के सामने पार्किंग में गाड़ी रोक दी और कुछ कहे बगैर गाड़ी से उतर गया। वो उमर के लिए अक्सर इसी मार्केट की एक शॉप से सिगरेट खरीदा करता था और 3 मिनट में सिगरेट खरीद कर वापिस आ गया। उमर ने सिगरेट का पैकेट उसे लेते हुए सिगरेट को केस में रखने के बजाय पैकेट में से एक सिगरेट निकाला और पैकेट को डैशबोर्ड पर रख दिया। ड्राइवर तब तक गाड़ी स्टार्ट करके उसे रिवर्स करते हुए पार्किंग से निकाल रहा था। पुलिस मोबाइल बाहर सड़क पर ही खड़ी थी। ड्राइवर गाड़ी एक बार फिर मेन रोड पर ले आया। उमर ने लाइटर से एक हाथ में ओट बनाते हुए होंठों में दबा हुआ सिगरेट सुलगाया और फिर लाइटर को दोबारा डैशबोर्ड पर रख दिया। खिड़की के शीशे को उसने कुछ और नीचे कर दिया ताकि धुआं आसानी से बाहर जाता रहे। वो अब अपने बाकी दिन की मसरूफियात के बारे में सोच रहा था। गाड़ी तेजी से सड़क पर रवान दवा थी। दाएं तरफ से एक मोटरसाइकिल ने उमर की गाड़ी को ओवरटेक किया। मोटरसाइकिल पर मौजूद 2 आदमियों में से पीछे बैठे हुए शख्स ने अपने जिस्म के गिर्द चादर लपेटी हुई थी। उमर की गाड़ी में मौजूद गार्ड्स हाथ में पकड़े हथियार लेकर यकदम चौकन्ना होते हुए ओवरटेक करते हुए उस मोटरसाइकिल को देखने लगे। सिगरेट पीते हुए उमर ने भी विंड स्क्रीन से आगे निकलती हुई उस मोटरसाइकिल को अचटती नजरों से देखा।
मोटर साइकिल पर बैठे दाढ़ी वाले नौजवान लड़कों में से किसी ने उमर की गाड़ी की तरफ नहीं देखा। तेजी से मोटरसाइकिल चलाते हुए वो दोनों आपस में बातों में मसरूफ थे और उसी तेज रफ्तारी के साथ मोटरसाइकिल चलाते हुए वो उमर की गाड़ी से बहुत आगे निकलते हुए आने वाली एक दूसरी सड़क पर मुड़ गए। पीछे बैठे हुए गार्ड्स यकदम मुतमईन हो गए। उमर ने सिगरेट की राख को झटका और सिगरेट का एक और कश लगाया। गाड़ी की स्पीड अब आहिस्ता हो रही थी। उन्हें अभी इसी सड़क पर मुड़ना था जिस सड़क पर वो मोटरसाइकिल गई थी। उस सड़क पर मुड़ते ही वो मोटरसाइकिल रुक गई। पीछे बैठे हुए लड़के ने बड़ी फुर्ती के साथ अपनी चादर के अंदर से एक स्टेन गन निकाली और उसके ट्रिगर पर हाथ रखते हुए वो बिल्कुल खामोशी से मोटरसाइकिल पर यूं बैठ गया जैसे किसी का इंतजार हो। उस सड़क पर ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। चंद राहगीरों और इक्का दुक्का मोटरसाइकिल और गाड़ी वालों ने उन्हें देखा, मगर सिर्फ तजस्सुस भरी नजरों से देखकर गुजर गए। स्टेन गन पकड़े हुए लड़के के हाथ में बंधी हुई घड़ी ने अचानक सिग्नल देना शुरू कर दिया। आ गया, उसके मुंह से निकला। किसी ने यकीनन मोड़ पर पहुंचने वाली उमर की गाड़ी के बारे में उन्हें इत्तला दी थी। मोटरसाइकिल चलाने वाला मोटरसाइकिल के हैंडल पर हाथ रखे हुए मुस्तैद हो गया। स्टेन गन ऊपर हो गई। उमर की गाड़ी का बोनट नजर आया। गाड़ी मुड़ रही थी। उस नौजवान ने होंठ भेजते हुए ट्रिगर दबा दिया। पहला ब्रश टाइल्स पर पड़ा था। गाड़ी को यकदम ब्रेक लगे और इससे पहले कि गाड़ी का ड्राइवर या गार्ड सूरत हाल को समझकर कुछ कर सकते, दूसरे ब्रश ने विंड स्क्रीन को छलनी कर दिया। पुलिस के पीछे आने वाली मोबाइल ने अचानक सायरन बजाना शुरू कर दिया। मोटरसाइकिल एक फराटे के साथ उस सड़क पर भागने लगी। वो नौजवान स्टेन गन अपनी चादर के अंदर कर चुका था। जब तक मोबाइल मुड़कर उमर की गाड़ी क्रॉस करते हुए आगे आई, उस सड़क पर से मोटरसाइकिल गायब हो चुकी थी। 02 PM। फिजा में तड़तड़ाहट की आवाज के साथ ही जब्बार चिल्लाया, हमला सर! उसका पांव ब्रेक पर था। वो आगे कुछ नहीं कह सका। वो दो तरफ से गोलियों की जद में आया था, ड्राइवर सीट की खिड़की और विंड स्क्रीन से। अचानक लगने वाली ब्रेक के झटके से उमर यकदम झुक गया। उसका सर डैशबोर्ड के पास था जब उसने जब्बार की चीखें सुनी और विंड स्क्रीन की खिड़कियों को उड़ते देखा। एक सेकंड के 1000वें हिस्से में उसने पहले अपने कंधे और फिर अपनी गर्दन में लोहे की गर्म सुलाखें सी घुसी महसूस की। वो बेइख्तियार चिल्लाया था। फिर यक्के बाद दीगरे उसने कुछ और सुलाखों को अपनी गर्दन, कंधे और कंधे की पुष्ट में धंसते महसूस किया। कितनी वो नहीं बता सकता था। फिर फिजा में यकदम खामोशी छा गई। उसका सर डैशबोर्ड पर टिका हुआ था। गाड़ी की पिछली सीट पर भी कोई कराह रहा था। दर्द की शिद्दत। चंद सेकंड्स के लिए खुली नजरों से उसने डैशबोर्ड से सर टिकाए टिकाए अपनी आंखों में उतरती धुंध को झटकने की कोशिश करते हुए नीचे देखा। उसके घुटने के करीब खाकी ट्राउजर खून से भीग रही थी। उसकी गर्दन के अतराफ और रकब से निकलने वाला खून एक धार की सूरत में उसकी गर्दन के नीचे वाले हिस्से से बह रहा था। उसने सायरन की आवाज सुनी। उसने सांस लेने की कोशिश की। वो जानता था पुलिस मोबाइल अभी उसके पास होगी। वो जानता था वो अगले चंद मिनटों में हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। उसके जहन में बहुत सारे ख्यालात गड़बड़ हो रहे थे। चेहरे, आवाजें, माजी, हाल, चीजें, लोग। वो सांस लेने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। वो चीख या कराह भी नहीं सकता था। उसके एहसासात मुकम्मल तौर पर मफलूज नहीं हुए थे। उसने देखा उसके हाथ में दबा सिगरेट खून के उस तालाब में गिरा हुआ था जो उसके पैरों के पास पायदान में जमा हो गया था, मगर वो अभी सुलग रहा था। उसमें से उठता हुआ धुआं अजीब से अंदाज में ऊपर उठ रहा था। चंद सेकंड में उसने सिगरेट के शोले को मुकम्मल तौर पर बुझते देखा। फिर धुआं बंद हो गया। उसकी आंखों से पानी निकल रहा था और उसकी नाक से खून। वो अपने सर को सीधा करना चाहता था। कोई उसका दरवाजा खोल रहा था। कोई उसके करीब बुलंद आ रहा था। उसने अलीजा के चेहरे को अपने जहन की स्क्रीन पर उभरते देखा। बेइख्तियार उसने सांस लेने की कोशिश की। फिर उसने उसके साथ जुनेद को देखा। वो सांस नहीं ले सका। उसे अपने दायां बाजू किसी के दोनों हाथों की गिरफ्त में महसूस हुआ। कोई उसके दाएं कंधे पर माथा टिकाए रो रहा था। वो इन आंखों से बहने वाले आंसुओं की नमी को शर्ट के अंदर अपने बाजू पर महसूस कर रहा था। मुझसे ये मत कहो कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। तुम्हें पता है इससे कितनी तकलीफ होती है मुझे। उसने अपने बाएं कंधे पर किसी के हाथ की गिरफ्त महसूस की। कोई उसे सीधा करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने दाएं कंधे को किसी की गिरफ्त से आजाद होते पाया। एक गहरी तारीकी ने उसको अपने हिसार में ले लिया।
डूबते हुए जहन के साथ जो आखिरी एहसास था वो किसी के उसे गाड़ी से निकालने की कोशिश का था। उसके जहन में उभरने वाला आखिरी ख्याल उसकी मम्मी का था। बाब 55। बाब 55। अलीजा बीबी, आप हॉस्पिटल चली जाएं। वो गाड़ी पोर्च में रोककर अभी नीचे उतर रही थी जब मुरीद बाबा ने उससे कहा। हॉस्पिटल किस लिए? उसने हैरानी से उन्हें देखा। अब्बास साहब का फोन आया था, उन्होंने कहा है, मुरीद बाबा ने बताया। अब्बास का? मगर क्यों? इस बार उसे तशवीश हुई। बस आप वहां चली जाएं, मुरीद बाबा ने कहा। नानो और मम्मी कहाँ हैं? अलीजा परेशान हो गई। वो लोग शॉपिंग के लिए गए हैं। अब्बास साहब भी उनका पूछ रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि उन्हें भी पैगाम दे दें और आपको भी। वो ये भी कह रहे थे कि आप फोन रखें और उनसे राब्ता करें, मुरीद बाबा ने कहा। कौन से हॉस्पिटल? अलीजा ने गाड़ी में दोबारा बैठते हुए कहा। सर्विसेज हॉस्पिटल, मुरीद बाबा ने कहा। आपने उनसे पूछा कि सब कुछ ठीक है ना? जी मैंने पूछा, वो कह रहे थे कोई एक्सीडेंट हुआ है। किसका? उमर साहब का। उसके दिल की धड़कन मस हुई। किसका? उमर साहब का। उसके दिल की एक धड़कन मस हुई। उमर का? वो ठीक तो है, आप उनसे बात कर लें। उन्होंने जल्दी फोन बंद कर दिया था, मुरीद बाबा ने कहा। अलीजा ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर बैग से अपना मोबाइल निकाला और उसे ऑन करते हुए अब्बास के मोबाइल पर कॉल की। लाइन मसरूफ थी। परेशानी के आलम में उसने निकाल ली। रास्ते में उसने एक बार फिर अब्बास को फोन किया। लाइन अब भी मसरूफ थी। दूसरी बार कॉल करने के बाद फोन रख रही थी जब दूसरी तरफ से उसे कोई कॉल आने लगी। उसने देखा वो अब्बास का नंबर था। हेलो अब्बास भाई, उमर को क्या हुआ है? उसने कॉल रिसीव करते ही कहा। दूसरी तरफ चंद लम्हों की खामोशी के बाद अब्बास ने कहा, तुम कहाँ हो? मैं सर्विसेज की तरफ आ रही हूँ, अभी गाड़ी में हूँ। उमर को क्या हुआ है? कुछ नहीं, मामूली सा एक्सीडेंट है, अब ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। तुम आराम से ड्राइव करो। अपनी गाड़ी में आ रही हो? हाँ। और ग्रैनी? वो मेरे साथ नहीं है, शॉपिंग के लिए मम्मी के साथ गई हैं। ठीक है, तुम आ जाओ। और अब उसे इस गेट के बारे में बता रहा था जहां से उसे आना था। मैं सिक्योरिटी वालों को तुम्हारी गाड़ी का नंबर दे देता हूँ, तुम्हें रोकेंगे नहीं, अब्बास ने कहकर फोन बंद कर दिया। उसने बेइख्तियार सुकून का सांस लिया। इसका मतलब है कि उमर ठीक है। मगर फिर उसे ख्याल आया कि पता नहीं उसे कितनी चोटें आई होंगी। और मैंने ये भी तो नहीं पूछा कि वो जख्मी कैसे हुआ। उसे ख्याल आया फोन करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो सर्विसेज के पास पहुंच चुकी थी और वो वहां हॉस्पिटल की चार दीवारी के बाहर जगह जगह पुलिस की गाड़ियां और अहलकार देख रही थी। उसे ये चीज गैर मामूली नहीं लगी। किसी हादसे में पुलिस के आला अफसर के जख्मी होने पर पुलिस की नफरी का होना जरूरी था। और फिर वो जानती थी खुद अब्बास भी वहीं था, वहां सिक्योरिटी की बहरहाल जरूरत थी। वह मुतलका गेट से अंदर चली गई। अंदर पुलिस वालों की तादाद बाहर से भी ज्यादा थी। वो गाड़ी पार्क कर रही थी जब उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। गाड़ी से बाहर निकलते हुए उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ सालिहा थी। गाड़ी के दरवाजे को लॉक करते हुए उसकी नजर सायरन बजाती एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों पर पड़ी जो उसी गेट से अंदर दाखिल हो रही थी। हेलो अलीजा, दूसरी तरफ से सालिहा कह रही थी। हेलो, अलीजा ने गाड़ी के लॉक को चेक करते हुए कहा। उसकी नजर अब भी उस एम्बुलेंस पर थी जो रुक गई थी, मगर उसके इर्द गिर्द पुलिस एहलकारों का लंबा चौड़ा हजूम था। वो अंदाजा कर सकती थी कि उसमें उम्र होकर मुस्तरब सी हो गई। आई एम सॉरी, दूसरी तरफ से उसने सालिहा को कहते सुना। किस लिए? वो सालिहा की बात पर कुछ हैरान हुई। उसकी नजर अब भी एम्बुलेंस पर थी जिसका पिछला दरवाजा अब खुल चुका था। उमर जहांगीर की डेथ के लिए। यकीन करो, मुझे वाकई अफसोस है। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा। डेथ? उसने बेयकीनी से कहा। मेरे खुदा! वो एम्बुलेंस से निकाले जाने वाले स्ट्रेचर को देख रही थी। स्ट्रेचर पर मौजूद सफेद चादर जगह जगह से खून आलूद थी। फोटोग्राफर्स की फ्लैश लाइट्स, स्ट्रेचर के साथ चलता हुआ अब्बास, उसके बहुत सारे दूसरे कजन्स। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, दूसरा, तीसरा, और फिर उसने खुद को भागते पाया था, पागलों की तरह हजूम को काटते। एक पुलिस वाले ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने पूरी कुव्वत के साथ उसको धक्का दिया। फिर उसके किसी कजन ने उसे देख लिया था और दोबारा किसी ने उसे नहीं रोका। वो भागती हुई स्ट्रेचर के सामने आई थी। अब्बास ने उसे देखा तो स्ट्रेचर पर रखा हुआ हाथ हटा लिया और चंद कदम तेजी से चलता हुआ उसके पास आ गया।
अलीजा के गिर्द अपना बाजू फैलाते हुए उसे एक तरफ किया था। स्ट्रेचर की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई थी। वो उसी तेजी से उसके सामने से गुजर गया। वो उसके इतने करीब से गुजरा था कि हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा छू सकती थी। सफेद चादर जहां सबसे ज्यादा खून आलूद थी, वो उसका सर और चेहरा ही हो सकता था, लेकिन वो हाथ नहीं बढ़ा सकी। वो ये यकीन ही नहीं कर सकती थी कि उस स्ट्रेचर पर इस हालत में उस सफेद चादर से ढांपा हुआ वजूद उमर का हो सकता है, उमर जहांगीर का। उसकी नजरों ने ऑपरेशन थिएटर तक स्ट्रेचर का ताक़ुब किया। फिर उसने गर्दन मोड़कर पहली बार अब्बास का चेहरा देखा। उमर। उसने कुछ कहने की कोशिश की मगर हलक से आवाज नहीं निकली, सिर्फ होंठों में जुम्बश हुई थी। अब्बास ने शिकस्त खोरदा अंदाज में सर हिलाया। वो बेयकीनी से उसका सुता हुआ चेहरा देखने लगी। एक फोटोग्राफर ने उन दोनों की तस्वीर खींची। फ्लैश लाइट चमकने पर उसने अब्बास को गजबनाक होते देखा था। इस बास्टर्ड से कैमरा लेकर धक्के देकर इसे यहाँ से निकालो, वो अब किसी से कह रहा था। अलीजा ने चंद पुलिस वालों को उस फोटोग्राफर की तरफ बढ़ते देखा। अब्बास को गलतफहमी हुई होगी, ये उमर नहीं होगा, कोई और होगा। उमर इस तरह कैसे? माउफ जहन के साथ उसने ऑपरेशन थिएटर के बंद दरवाजे को देखा। उसने अब्बास के बाजू को अपने कंधे से हटाने की कोशिश की। वो उमर को उसके मोबाइल पर रिंग करना चाहती थी। उसे याद आया, उसके पास ना उसका बैग था, ना फोन, गाड़ी की चाबी तक नहीं थी। अलीजा, उस कमरे में चली जाओ, तानिया वहां है, मैं कुछ देर में आता हूँ। अब्बास उसे एक तरफ ले जाने की कोशिश करने लगा। मुझे मोबाइल दें, मुझे फोन करना है। वो अब किसी दूसरे कॉरिडोर में थी। उसका एक और कजन खिजर अली उनके साथ था। वो और अब्बास कुछ कह रहे थे। अलीजा के लिए उनकी बातों को समझना मुश्किल हो रहा था। उनके साथ चलते हुए वो अब किसी कमरे में दाखिल हो गई। वहां तानिया थी और उसकी फैमिली की चंद दूसरी खवातीन भी। प्लीज फोन दें, उसने कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए कहा। किसको फोन करना है? मैं कर देता हूँ, अब्बास ने नरमी से कहा। उमर को। अब्बास ने तानिया को इशारा किया। जस्ट टेक केयर ऑफ हर, इसे संभालो। तानिया ने उसे बाजू से पकड़कर एक तरफ ले जाने की कोशिश की। वो यकदम मुश्तिल हुई। उसने दृष्टि से तानिया का बाजू झटका। मैं आपसे फोन मांग रही हूँ और आप मेरी बात नहीं सुन रहे। अब्बास बाहर जाते जाते रुक गया। अलीजा की आवाज बेहद बुलंद थी। अब्बास ने एक नजर दरवाजे के बाहर मौजूद हजूम पर डाली। खिजर, तुम चलो, मैं आता हूँ, उसने साथ खड़े खिजर से कहा और उसके बाहर निकलते ही दरवाजे को आहिस्तगी से बंद कर दिया। मुझे फोन दें, अलीजा एक बार फिर गुर्राई। मैं उसे फोन करना चाहती हूँ। जिसे तुम फोन करना चाहती हो वो अब नहीं है, प्लीज तुम। उसने अब्बास की बात काट दी। मेरी बात करवा दें उससे, प्लीज अब्बास भाई, बात करवा दें। आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, उमर को कुछ नहीं हुआ, उसे कुछ नहीं हो सकता। इस बार उसकी आवाज में बेचारगी थी। उसके पास इतनी सिक्योरिटी होती है, उसे कुछ कैसे हो सकता है? आप खुद सोचे ना, कोई गलत फहमी हो गई है। अब्बास भाई, वो बेरब जुमले बोल रही थी। क्या कह रही थी नहीं जानती थी, क्या कहना चाहती थी उससे भी बेखबर थी। अब्बास के चेहरे की थकन और शिकस्तगी उसके खौफ में इजाफा कर रही थी। मगर खौफ, क्या खौफ था उसे? बेयकीनी, कैसी बेयकीनी थी? अब्बास ने इस बार कुछ नहीं कहा। वो एक टेबल की तरफ बढ़ गया। अलीजा की नजर पहली बार उसके बाएं हाथ में पड़े सील पैकेट पर पड़ी, जिसकी सील वो अब खोल रहा था। पैकेट की सील खोलने के बाद उसमें मौजूद चीजों को आहिस्तगी से टेबल पर उलट दिया। वो उमर का मोबाइल, गिलासेस, सिगरेट, केस, लाइटर, घड़ी, वॉलेट और चंद दूसरी चीजें थी। वो कुछ चीजों को पहचानती थी, कुछ को नहीं पहचानती थी। कुछ भी कहे बगैर छोटे छोटे कदम उठाते हुए वो मेज के करीब आकर खड़ी हो गई। मेज पर पड़ी हुई चीजों में से कुछ खून आलूदा थी। वो इन चीजों को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर सकी। बस दोनों हाथ मेज पर रखे एक टिक उन्हें देखती रही। वो सब चीजें कभी उस शख्स की जिंदगी का एक हिस्सा थी जिसे वो अपने वजूद का समझती थी। उन सब चीजों पर उस शख्स के हाथों का लम्स था जिसे उसने दुनिया में सबसे ज्यादा चाहा था। उमर जहांगीर खत्म हो चुका था। सामने पड़ा हुआ मोबाइल फोन अब कभी भी उमर के साथ उसका राब्ता नहीं करवा सकता था। उसने वहीं बैठकर टेबल पर अपना सर टिका दिया और मुठ्ठियां भींचकर रोती चली गई। मैंने उसे कभी उससे ये नहीं कहा था कि वो इस तरह चला जाए। वो बेतहाशा रो रही थी, बच्चों की तरह जुनूनी अंदाज में।
इस लम्हे उस पर पहली बार इंकशाफ हुआ था कि उसे उमर से कभी नफरत नहीं हुई थी। वो उमर से नफरत कर ही नहीं सकती थी। सिर्फ एक धोखा और फरेब था जो वो अपने आप को दे रही थी, सिर्फ इस ख्वाहिश और इस उम्मीद पर कि शायद कभी उसे उमर से नफरत हो जाए। कभी 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 शायद कभी। तुम क्रिस्टी के मरने पर इतना रोई हो तो मेरे मरने पर कितना रोगी? उमर ने उससे बड़ी संजीदगी से पूछा। अब किस तरह की बातें करते हैं? वो बेइख्तियार बोली। पूछ रहा हूँ अपनी मालूमात में इजाफे के लिए। उमर मुस्कुराया। अलीजा पिछले 4 दिन से क्रिस्टी के मर जाने के बाद वक्फे वक्फे से रो रही थी और वो फोन पर क्रिस्टी के बारे में जानने के बाद इस्लामाबाद से ताज़ियत करने आया था। वो इस कदर रंजीदा और दिल गिरफ्तार थी कि उमर जो सिर्फ एक दिन के लिए आया था, 4 दिन उसके पास रहा। चौथे दिन जब वो एयरपोर्ट तक ड्राइवर के साथ उसे छोड़ने जा रही थी तो उसने अलीजा से पूछा था, इस तरह की बातें ना करें मेरे साथ। अलीजा को एक बार फिर क्रिस्टी याद आने लगी। मुझे पता है आपको कुछ नहीं होगा। क्यों? उमर कुछ हैरान हुआ। बस मुझे पता है। वो खिड़की से बाहर देखने लगी। तुम मेरे लिए रोना नहीं चाहती हो, इसीलिए ये कह रही हो। अलीजा की आंखों में एक बार फिर आंसू आने लगे। ओके ओके सॉरी। उमर ने बेख्तियार दोनों हाथ उठाए। मगर बहुत लकी है जिसके लिए तुम इतना रोई हो, वो माजरत करते हुए भी कहने से बाज नहीं आया। तानिया ने उसे कंधों से पकड़कर सीधा करने की कोशिश की। अब्बास होंठ बेचे उन तमाम चीजों को एक बार फिर उसी लिफाफे के अंदर डाल रहा था। जस्ट रिलैक्स अलीजा, रोने से वो आ तो नहीं जाएगा। तानिया ने उसके कंधों पर कुछ दबाव डालते हुए कहा। मेरे रोने से तो आ जाता था। तानिया कुछ कह नहीं सकी। मुझे उसके पास जाना है, मैं उसके पास रहना चाहती हूँ। उसका पोस्टमार्टम हो रहा है अलीजा, मैं कुछ देर बाद तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा। अब्बास ने उसके कंधे को थपकते हुए कहा। वो बेबसी से रोते हुए उसे देखती रही। बहुत सालों बाद वो यूं किसी के सामने रो रही थी, आंसुओं को रोकने की कोई इरादी या गैर इरादी कोशिश किए बगैर। तुम कभी मैच्योर नहीं हो सकती अलीजा, तुम कभी मैच्योर नहीं हो सकती हो। इस हालत में पहली बार उसे उमर की इस बात का यकीन आ रहा था, बल्कि इस वक्त यहाँ बैठे उसकी हर बात का यकीन। वो ठीक कहता था। वो जज्बाती थी, वो इमेच्योर थी और वो उमर के किसी भी हिस्से में इन दोनों खामियों से निजात हासिल नहीं कर सकती थी। कोई उमर से बेहतर उसे नहीं जान सकता था। अब्बास अब कमरे से बाहर जा रहा था। अब्बास के जिस्म पर मौजूद यूनिफॉर्म ने उसे एक बार फिर उमर की याद दिलाई थी। क्या कुछ ना था जो अब उसे याद ना दिलाता। वो घुटनों में सर देकर बैठ गई। तो ये होती है जिंदगी और ये मोहब्बत। एक वक्त में एक ही चीज खत्म होती है, दोनों नहीं। और इस वक्त उसके दिल में उमर के लिए कोई शिकायत, कोई गिला, कोई शिकवा नहीं था। वो अब जिंदगी में कभी हो भी नहीं सकता था। फायरिंग की थी किसी ने। गाड़ी में उसका एक गार्ड और ड्राइवर भी मारा गया। अब्बास को इस एक्सीडेंट की 10 मिनट बाद ही इतला मिल गई थी। वो बहुत अपसेट था। यहाँ से खुद हेलीकॉप्टर में गया था उसकी बॉडी लाने के लिए। मैं कोशिश करती रही कि तुम लोगों को किसी तरह ट्रेस आउट कर लूं, मगर नहीं कर सकी। खुद अब्बास ने भी बहुत कोशिश की। तानिया धीमी आवाज में साथ वाली कुर्सी पर बैठी कह रही थी। अलीजा के लिए ये सब इतलाआत बेमायनी थी। वो चंद दिनों में अमेरिका जाने वाला था, एक्स पाकिस्तान लीव पर, और ये सब कुछ हो गया। अलीजा ने यकदम सर उठाकर धुंधलाई हुई आंखों से उसे देखा। तुम्हें लगता है मैं चला जाऊंगा तो तुम्हारे और जुनैद के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाएगा? अगर ऐसा है तो मैं वाकई दोबारा कभी तुम दोनों के दरमियान नहीं आऊंगा। मैं जुनैद से दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। तुम कुछ पूछना चाहती हो? तानिया ने उसे मुखातिब किया। अलीजा ने नफी में सर हिला दिया। उसके गले में आंसुओं का फंदा सा लग गया था। तुम हार्ड कोर क्रिमिनल हो, बस फर्क ये है कि तुमने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। जिस दिन ये यूनिफॉर्म उतर जाएगा उस दिन तुम भी उसी तरह मारे जाओगे जिस तरह तुम दूसरे लोगों को मारते हो। अलीजा ने शिकस्त को उर्दी के आलम में सर झुका लिया। उसने जिंदगी में खुद को इससे ज्यादा शिकस्ता और काबिल रहम कभी महसूस नहीं किया था। वो कितनी तकलीफ से गुजरा होगा, कितना दर्द बर्दाश्त करना पड़ा होगा उसे। वो एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी। कौन कहता है कि किसी शख्स से एक बार मोहब्बत होने के बाद उसे नफरत हो सकती है? जो कहता है वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है। साइकिल ऑफ रिप्लेसमेंट में सिर्फ मोहब्बत की रिप्लेसमेंट नहीं होती,
خود کو فریب دینے کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ ہمارے وجود میں خون کی گردش کی طرح بسنے والا نام کس کا ہوتا ہے۔ ہم کبھی بھی اسے اپنے وجود سے نکال کر باہر نہیں پھینک سکتے۔ تہ در تہ اس کے اوپر دوسری محبتوں کا ڈھیر لگائے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں اب ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اب ہم اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو زیادہ دور ہوتا جاتا ہے وہ زیادہ قریب آتا جاتا ہے، اور وہ ہمارے دل اور دماغ کے اس حصے میں جا پہنچتا ہے کہ کبھی اس کو وہاں سے نکالنا پڑے تو پھر اس کے بعد ہم نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ وہ اس کی محبت میں 18 سال کی عمر میں گرفتار ہوئی تھی۔ وہ واحد شخص تھا جس سے وہ ہر بات کر لیتی تھی، بہت ساری وہ باتیں بھی جو وہ کبھی شہلا اور نانو سے بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ واحد شخص تھا جو اس کے نخرے برداشت کرتا تھا، ناز اٹھاتا تھا۔ اس نے عمر جہانگیر کے علاوہ کسی سے اتنی ضد نہیں کی تھی، کسی کو اتنا تنگ نہیں کیا تھا۔ اس نے عمر جہانگیر کے علاوہ کسی کو برا بھلا بھی نہیں کہا تھا، کسی سے بدتمیزی بھی نہیں کی تھی، کسی پر چیخی چلائی بھی نہیں تھی۔ وہ واحد شخص تھا جو اس کی ہر غلطی اپنے کندھوں پر لینے کے لیے تیار رہتا تھا، جو اسے محفوظ رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، اور وہ یہ سب کچھ جانتی تھی۔ اور اب جب وہ اپنی زندگی کا سفر ختم کر کے دنیا سے جا چکا تھا تو وہ اندھوں کی طرح ہاتھ پھیلائے کھڑی رہ گئی تھی۔ کوئی دوسرا شخص اس کے لیے عمر جہانگیر نہیں بن سکتا تھا۔ دونوں ہاتھ سر پر رکھے وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی، بالکل اس طرح جس طرح وہ 18 سال کی عمر میں ایک بار عمر کے سامنے پارک میں روئی تھی، اور پھر اس کے بعد اس کے سامنے کئی بار روئی تھی۔ کیا کچھ تھا جو اسے آج یاد نہیں آ رہا تھا؟ اسے پہلی بار لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ، کہیں بھی کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ کیا تھا اگر وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا؟ پھر بھی اس کا ہونا ہی کتنا کافی تھا اس کے لیے۔ کچھ فاصلے پر موجود ایک کمرے میں عمر جہانگیر کے جسم کو کاٹنے والے سارے نشتر اسے اپنے وجود پر چلتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اسے اپنی زندگی میں بہت سی تکلیف دہ چیزوں سے بچایا کرتا تھا، اور وہاں بیٹھے علیزہ سکندر کی خواہش اتنی تھی کہ وہ اس سب کے بدلے عمر جہانگیر کو صرف ایک چیز سے بچا لے، موت سے۔ رپورٹرز نے صوبائی وزیر کو گھیرا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہاسپٹل پہنچے تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے سر؟ اس قتل کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ ایک رپورٹر نے ان سے سوال کیا۔ دیکھیں، اس بارے میں فوری طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پولیس نے انویسٹیگیشن کا آغاز کر دیا ہے۔ امید ہے جلد ہی اس افسوسناک حادثے کے مجرموں کو پکڑ لیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے پاس کھڑے آئی جی پنجاب کو دیکھتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں سر ہلاتے کہا۔ کیا پولیس کو اس معاملے میں کوئی لیڈ ملی ہے؟ ایک اور سوال ہوا۔ اس بارے میں آئی جی صاحب آپ کو اچھی طرح بتا سکتے ہیں، مگر میں نہیں سمجھتا کہ وہ ابھی فوری طور پر آپ کو کوئی بریکنگ نیوز دے سکتے ہیں۔ پھر بھی بہتر ہے یہ سوال آپ انہی سے کریں، انہوں نے آئی جی صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عمر جہانگیر ہمارے ایک بہت قابل آفیسر تھے، آئی جی نے اشارہ پاتے ہی اپنے بیان کا آغاز کیا۔ ان کے ساتھ ہونے والا حادثہ دراصل ہمارے پورے ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ جیسا کہ آپ کو منسٹر صاحب نے بتایا، پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن کا آغاز کر دیا ہے۔ ہم حالات کا جائزہ لینے اور شواہد کی مدد سے 48 گھنٹوں کے اندر مجرموں کو پکڑنے کی کوشش کریں گے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ ہم اس کوشش میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ ایک رپورٹر نے آئی جی کی بات کو کاٹا۔ سر، یہ جو آپ 48 گھنٹے کی بات کر رہے ہیں، آج تک کون سی پولیس 48 گھنٹوں میں مجرم پکڑنے میں کامیاب ہوئی ہے؟ آئی جی کے ماتھے کے بل کچھ گہرے ہو گئے۔ اگر پولیس 48 گھنٹوں میں مجرم پکڑنے میں کامیاب ہوتی تو آج ہم اور آپ یہاں کھڑے ہو کر یہ گفتگو نہ کر رہے ہوتے۔ پچھلے ایک سال میں جب سے آپ آئی جی پنجاب بنے ہیں، 7 مختلف رینکس کے آفیسر کو مارا گیا ہے، اور پولیس اس سلسلے کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ اس بار آئی جی نے قدرے ترشی سے اس غیر ملکی براڈ کاسٹنگ کے ادارے سے وابستہ تیز ترار قسم کے پاکستانی صحافی کی بات کو کاٹ دیا۔ پولیس نے ایک کے علاوہ تمام واقعات میں ملوث مجرموں کو پکڑ لیا ہے۔ اگر آپ واقعی مجرموں کو گرفتار کر چکے ہوتے تو آج آپ کا ایک اور آفیسر اس طرح مارا جاتا۔ اس رپورٹر نے بھی اتنی ہی تندی اور تیزی سے کہا۔ صوبائی وزیر نے بروقت مداخلت کی۔ دیکھیں، یہ کچھ زیادہ ہی سخت قسم کا تبصرہ ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ آئی جی صاحب نے جب سے اپنی ٹینیور شروع کی ہے، پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہت بہتر ہو گئی ہے۔ سر، آپ نہیں سمجھتے کہ اتنے سینئر آفیسر کے قتل کے موقع پر لا اینڈ آرڈر کی بہتر صورتحال کی تعریف کچھ مذاق لگتا ہے؟ صوبائی وزیر چند لمحے کچھ نہیں بول سکے۔ اگر آپ پورے ملک میں دیکھیں تو میں اس لحاظ سے صورتحال میں بہتری کی بات کر رہا ہوں۔ صوبائی وزیر بے اختیار بوکھلائے۔
बाकी तीनों सूबों में कभी भी इस तरह धड़ाधड़ ऑफिसर कत्ल नहीं हुए, खास तौर पर एक साल में। आखिर पंजाब में ही ऐसा क्यों हो रहा है? वजीर के साथ साथ आईजी पंजाब का दिल चाहा कि वो इस रिपोर्टर की बतीसी के साथ साथ उसकी जुबान निकालकर भी उसके हाथ में रख दें, मगर हार्वर्ड से पढ़ा हुआ वो सहाफी एक वफाकी वजीर का बेटा था। वो उसकी बकवास और सवाल सुनने पर मजबूर थे। आप पंजाब की आबादी भी तो देखें, वजीर के मुंह से बेइख्तियार निकला। आबादी से ऑफिसर्स के कत्ल का क्या ताल्लुक है? मैं लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के हवाले से आबादी का जिक्र कर रहा हूँ। वजीर साहब ने कदर तहम्मुल मिजाजी का सबूत दिया। बाकी सूबों में कम आबादी की वजह से इतने मसाइल का सामना पुलिस को नहीं करना पड़ता जितना पंजाब में करना पड़ता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हम हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आपका एक एसपी जो किसी शहर में बादशाह के बराबर होता है, वो दिन दिहाड़े अपने गार्ड और ड्राइवर के साथ शहर के बीच में कत्ल हो जाए तो आम लोग अपनी हिफाजत के लिए किसकी तरफ देखें? इस रिपोर्टर ने च्युइंगम चबाते हुए कहा। पुलिस अगर अपने एक ऑफिसर को नहीं बचा सकती तो वह एक आम आदमी को कितनी सिक्योरिटी दे सकती है? देखें, जिस शहर में वो तैनात थे वो पंजाब के हसास इलाकों में शुमार किया जाता है, और उमर जहांगीर के बारे में महकमे को कुछ ऐसी खबरें मिली थी कि उनकी जान को खतरा था। उन्हें धमकियां में फोन कॉल्स भी की जाती रही थी। फिर हम इस पूरे मामले में दहशतगर्दी के अंसर को भी खारिज अज़मकान करार नहीं दे सकते। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ऐसे हादसात का सबब बन जाते हैं, मगर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे हादसा दोबारा ना हो। थोड़ी देर में पुलिस ऑफिसर की एक हाई लेवल की मीटिंग हो रही है। कल वजीर दाखिला आ रहे हैं, वो भी एक मीटिंग कर रहे हैं। इस बार आईजी ने मिनिस्टर से इजाजत लेते हुए कहा, और रिपोर्टर्स ने मजीद कोई सवाल नहीं किया तो आईजी की जान में जान आई। सर, आपने दहशतगर्दी का जिक्र किया है, क्या आपका इशारा मजहबी दहशतगर्दी की तरफ है? लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को खराब करने के लिए ये किसी गैर मुल्की एजेंसी का काम है? एक दूसरे रिपोर्टर ने नुक्ता उठाया। मैंने आपको बताया ना, इस मरहले पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे ही हम इस मामले में कुछ प्रोग्रेस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप लोगों को पुलिस की तमाम कार्रवाई के बारे में आगाह कर देंगे, आईजी ने कहा। उमर जहांगीर काफी मुतनाज़ा शख्सियत थे। पिछले कुछ सालों में कई हवालों से वो अखबारात में आते रहे। कहीं ये किसी जाती दुश्मनी का नतीजा तो नहीं है? एक दूसरे रिपोर्टर ने कहा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, आईजी ने इस बार उकताए हुए लहजे में कहा। सर, क्या इस कत्ल से आइंदा आने वाली पुलिस रिफॉर्म पर कुछ असर पड़ेगा? इस बार एक दूसरे रिपोर्टर ने पूछा। कैसा असर? क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस के इख्तियारात में कमी और रोल में तब्दीली के लिए आप पुलिस ऑफिसर को मजीद रोल में तब्दीली करके आप पुलिस ऑफिसर को मजीद वल्नरेबल बना देंगे? इसके बरक्स मैं समझता हूँ कि इस नए सिस्टम से पुलिस और अवाम के दरमियान एक बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप पैदा होगा और इस तरह के हादसात का सद्देबाब भी हो सकेगा। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी बेहतर होगी। सूबाई वजीर ने अपने पसंदीदा जुमले की एक बार फिर गर्दान की। यानी एसपी जब डीपीओ और डीसी जब डीसीओ कहलाए जाने लगेंगे तो फिर वो इस तरह खुलेआम सड़कों पर नहीं मारे जाएंगे। शहराज साहब, आज आपको हुआ क्या है? किस तरह के सवाल कर रहे हैं आप बार बार? बिल आखिर सूबाई वजीर चिढ़कर बोल ही उठे। शहराज साहब ने सिविल सर्विस के एग्जाम में दूसरी पोजीशन ली है और चंद हफ्तों में अकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं, एक दूसरे रिपोर्टर ने लुकमा दिया। फिर तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पुलिस सर्विस में ही आएंगे ताकि वो बेहतरी जो हम नहीं ला सके आप लाएं और हम भी आपकी सलाहियतों से फायदा उठाएं। इस बार आईजी ने अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट लाते हुए कहा। वैसे भी पुलिस के महकमे को जरूरत है आप जैसे ऑफिसर्स की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सूबाई वजीर ने आईजी के जवाब में कुछ इजाफा किया और अगले किसी सवाल से पहले अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा। मैं उल्लू का पट्टा हूँ, मैं जाऊंगा पुलिस सर्विस में, शहराज सदीकी बड़बड़ाया। हर चीज बहुत तेज रफ्तारी से हुई। दूसरे दिन शाम के करीब उमर जहांगीर की तदफीन कर दी गई। जहांगीर माज दोपहर के करीब पाकिस्तान पहुंच गए थे। ज़ारा मसूद पाकिस्तान नहीं आ सकी। वो एक ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट थी और उनके शोहर ने बीमारी और ऑपरेशन के मद्देनजर उन्हें इतला देने से माजरत कर ली थी। माज हैदर जैसे खानदान के लिए उमर जहांगीर का कत्ल एक बहुत बड़ा सदमा था। यह तस्वुर करना भी उनके लिए मुश्किल था कि उनके अपने खानदान के किसी फर्द को भी इस तरह दिन दिहाड़े कत्ल किया जा सकता है। उमर के कातलों के बारे में फौरी तौर पर कुछ पता नहीं चला। वो कौन थे, उन्होंने उमर को क्यों कत्ल किया, और ऐसे बहुत से सवालात का कोई जवाब कहीं नहीं था। शायद आने वाला वक्त भी इन सवालात का जवाब नहीं दे सकता था। मुआज हैदर का पूरा खानदान अगले कई दिन तक उनके घर पर जमा होता रहा। मौजूद गुफ्तगू हर एक के लिए उमर ही रहा। अलीजा उन सबको उमर के बारे में बातें करते सुनती रही। वो डिस्कस करते थे किस तरह उन्होंने उमर को बहुत सी चीजों के बारे में समझाने और आगाह करने की कोशिश की थी।
किस तरह उमर उन तमाम बातों को इग्नोर करता रहा, किस तरह उसकी लापरवाही उसे मुख्तलिफ मौके पर नुकसान पहुंचाती रही, और हर बहस का नतीजा एक ही निकला कि उमर के साथ होने वाली इस हादसे में उमर की अपनी भी गलतियां मुआविन थी। उसे बेजरर बनकर सिस्टम का हिस्सा बनना नहीं आया था। वो एक पॉपुलर ऑफिसर भी नहीं था। अलीजा जानती थी उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसे उमर से हमदर्दी नहीं थी। जो उमर के साथ होने वाले वाकये पर रंजीदा नहीं था, मगर इस सब के बावजूद वो फैक्ट्स और फिगर की बात करते रहे थे, क्योंकि वो सब लोग प्रैक्टिकल थे, हकीकत पसंद, जो किसी भी चीज को रिश्तों और जज्बाती ताल्लुक के हवाले से नहीं ले सकते थे। वो सब उमर को इतने बेतासुर और गैर जज्बाती अंदाज में डिस्कस कर सकते थे, मगर अलीजा नहीं कर सकती थी। वो जानती थी वो कोई ईमानदार ऑफिसर नहीं था। वो बहुत से गलत कामों में मुलविस रहा था। बहुत से लोगों को उसने बहुत तकलीफ भी दी थी और बहुत से लोगों के लिए मुसलसल परेशानी का बायस भी बना था। कोई भी उसकी मौत को जो बोया वो काटा करार दे सकता था। कोई भी ये कह सकता था कि उमर जहांगीर इसी सलूक का मुस्तहिक था, मगर वो ऐसा नहीं कह सकती थी। उसकी जिंदगी में वो उस पर बेतहाशा तनकीद करने लगी थी। उसे उमर जहांगीर के कामों पर एतराज होने लगा था, मगर उसकी मौत के बाद उसे ये एहसास हुआ था कि वो अच्छा आदमी नहीं था, अच्छा ऑफिसर भी नहीं था दूसरों के लिए, मगर उसके लिए वो हमेशा अच्छा ही रहा था। वो उमर जहांगीर को दूसरों की ऐनक से नहीं देख सकती थी। वो दूसरों के साथ होने वाली ज्यादतियों की बुनियाद पर उससे नफरत नहीं कर सकती थी। वो ये नहीं कह सकती थी कि उसके साथ जो हुआ ठीक हुआ। उमर की मौत के एक हफ्ते बाद उसने अखबार से इस्तीफा दे दिया था। वो जानती थी कि वो अब इस सिस्टम के बारे में कभी कुछ नहीं लिख सकेगी। वो किस मुंह से इन तमाम चीजों के लिए दूसरों पर तनकीद कर सकती थी, जिनके लिए उसने उमर जहांगीर को माफ कर दिया था, जिनके लिए वो उमर जहांगीर को बख्शने पर तैयार थी, अपनी फैमिली के उस फर्द को जिसके साथ उसका जज्बाती ताल्लुक था। उसे नहीं पता था कि जहांगीर माज उमर की मौत से किस हद तक मुतासिर हुए थे। उनके खानदान के दूसरे मर्दों की तरह वो भी अपने एहसासात छुपाने और चेहरा बेतासुर रखने में माहिर थे। ये वो खसूसियत थी जो माज हैदर जैसे बड़े खानदानों के लोगों के साथ सारी उम्र चलती थी। अलीजा ने निमरा की मौत पर जहांगीर माज को परेशान देखा था, मगर उमर की मौत पर वो बेहद खामोश थे। उनके और उमर के दरमियान कभी भी खुशगवार ताल्लुकात नहीं रहे। वो जानती थी पिछले चंद सालों से उन दोनों के दरमियान बोलचाल तक बंद थी, मगर खुद वो भी पिछले 1.5 साल से उमर के साथ नारवा सलूक कर रही थी। इसके बावजूद उसकी मौत ने उसे बुरी तरह तोड़ दिया था। वो नहीं जानती थी कि जहांगीर माज के अंदर कितनी तोड़फोड़ हुई है। आखिर वो उनका बड़ा बेटा था। उमर के हादसे की वजह से उसकी शादी पसे मंजर में चली गई थी। समीना ने पाकिस्तान में अपना क़याम बढ़ा दिया था, मगर उन्होंने जुनैद की फैमिली ने उनसे इस मामले में फिलहाल कोई बात नहीं की थी। उमर के 10वें के बाद आहिस्ता आहिस्ता सबने वापस जाना शुरू कर दिया। हर एक अपनी अपनी जिंदगी की तरफ दोबारा लौट रहा था। जहांगीर माज भी 12वें दिन अपनी फैमिली के साथ वापस अमेरिका चले गए थे। आप चाय पियेंगे? अलीजा ने जुनैद से पूछा। उन दोनों के दरमियान तकरीबन 2 हफ्ते के बाद मुलाकात हो रही थी। वो हॉस्पिटल से घर तक हर जगह मौजूद रहा था और 10वें तक हर रोज अपने घर वालों के साथ उनके घर आता रहा था, मगर उसके और अलीजा के दरमियान बराह रास्त कोई बात नहीं हुई। हादसे के बाद आज पहली बार वो अलीजा से मिल रहा था और उसकी फैमिली उसके साथ नहीं थी। वो जिस वक्त आया था उस वक्त तानिया वापस घर जा रही थी और अलीजा उसके साथ पोर्च में खड़ी थी। जब गेट से जुनैद की गाड़ी अंदर दाखिल हुई थी, उसने गाड़ी तानिया की गाड़ी के पास लाकर खड़ी कर दी। कुछ देर उसके और तानिया के दरमियान रस्मी बातचीत हुई, फिर तानिया अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई। आइए अंदर आ जाएं, ये पहला जुमला था जो बहुत दिनों बाद उन दोनों के दरमियान बोला गया था। नहीं, बाहर लॉन में बैठते हैं, जुनैद ने कहा और वो खामोशी से लॉन की तरफ बढ़ गई। और अब वो पिछले 10 मिनट से लॉन की कुर्सियों में चुपचाप बैठे थे। अलीजा ने इस गहरी खामोशी को तोड़ने के लिए उससे पूछा, आप चाय पियेंगे? नहीं, मैं यहाँ आने से पहले चाय पी कर आया हूँ, जुनैद ने जवाबन कहा। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद कहा, जोडत ने फोन किया था तुम्हें? जोडत ने? नहीं, नानू से उसकी 2 बार बात हुई है, अलीजा ने बताया। वो तुमसे बात करना चाहती थी। हाँ, नानू ने मुझे बताया, मगर ये इत्तेफाक ही है कि उससे दोनों बाद मेरी बात नहीं हो सकी। वो हफ्ते की रात को पाकिस्तान आ रही है, जुनैद ने बताया। अलीजा खामोशी से उसे देखती रही। वो कह रहा था, वो यहाँ ठहरना चाहती है। वो जानती थी जुनैद का इशारा किस तरफ है। मैंने उसे अपने घर रहने के लिए कहा है, मगर उसकी ख्वाहिश है यहाँ ठहरने की।
آپ ان سے یہاں آنے کے لیے کہہ دیں، مجھے اور نانو کو انہیں ریسیو کر کے خوشی ہوگی، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ جانتی تھی جوڑت پاکستان کیوں آ رہی تھی۔ انہوں نے آپ کو فلائٹ کی ٹائمنگ کے بارے میں بتایا ہے؟ اسے ایئرپورٹ سے میں ریسیو کر لوں گا، جنید نے کہا۔ علیزہ خاموش رہی۔ وہ یہاں ہماری شادی تک رکے گی۔ علیزہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ایک عجیب سی خاموشی ان دونوں کے درمیان درائی۔ چند دنوں تک امی اور بابا تم لوگوں سے اس سلسلے میں بات کرنے آئیں گے، اس نے آہستگی سے کہا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس سلسلے میں تم سے بات کروں تاکہ تم نانو کو اور اپنی ممی کو بتا سکو۔ علیزہ نے اس کے چہرے سے نظر ہٹا لی۔ میں چاہتا ہوں شادی سادگی سے ہو، میں زیادہ دھوم دھڑکا نہیں چاہتا، وہ دھیمی آواز میں بول رہا تھا۔ اس نے جس دن جنید کو اپنے اور عمر کے بارے میں بتایا تھا، اس سے اگلے دن عمر کے ساتھ وہ حادثہ پیش آ گیا تھا۔ اس نے جنید سے کہا تھا کہ وہ اسے یہ سب کچھ اس لیے بتا رہی ہے تاکہ حقائق سے آگاہ ہو کر وہ آسانی سے فیصلہ کر سکے اسے ابھی بھی علیزہ سے شادی کرنی ہے یا نہیں۔ پچھلے 15 دنوں میں جنید سے اس کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ جنید کی کیفیات اور تاثرات کے بارے میں نہیں جانتی تھی، مگر وہ یہ ضرور جانتی تھی کہ جنید کے سامنے ایک بار پھر عمر کے لیے اس کے جذبات اور احساسات عیاں ہو گئے تھے۔ اس نے بڑے وثوق سے عمر کے قتل سے ایک دن پہلے ہوٹل میں بیٹھ کر جنید سے کہا تھا کہ وہ عمر سے محبت کرتی تھی، مگر اب نہیں کرتی۔ اس کے اور عمر کے درمیان اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ وہ اب عمر کی اصلیت جان چکی ہے، اور اس کی اصلیت جان لینے کے بعد وہ عمر جیسے دھوکے باز اور خود غرض انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ جانتی تھی پچھلے 15 دن میں عمر کی موت پر اس کے رد عمل نے جنید پر یہ حقیقت آشکار کر دی ہوگی کہ وہ اب بھی عمر سے محبت کرتی ہے۔ وہ اتنا بے وقوف نہیں تھا کہ یہ اندازہ نہ کر پاتا۔ وہ اپنے چہرے کو کبھی بے تاثر رکھنے میں کامیاب نہیں ہو پائی تھی۔ خوشی اور غم، ہر تاثر اس کے چہرے سے جھلکتا تھا، اور زندگی میں پہلی بار اسے اپنے چہرے کی اس خوبی پر کوئی شرمندگی نہیں ہوئی تھی، کوئی غصہ نہیں آیا تھا۔ اس نے ان 15 دنوں میں ہر بار جنید کا سامنا ہونے پر کبھی یہ ظاہر ہونے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ عمر کی موت سے متاثر نہیں ہوئی، کیونکہ وہ اس کے ساتھ اپنا جذباتی تعلق ختم کر چکی تھی۔ وہ اپنی زندگی اور ذات کے گرد چڑھائے گئے ان پھولوں سے تنگ آ گئی تھی جنہیں سنبھالتے سنبھالتے وہ پچھلے کئی سالوں سے ہلکان تھی، اور شاید وہ لاشعوری طور پر جنید کے سامنے یہ اعتراف بھی کر لینا چاہتی تھی کہ وہ کبھی عمر سے نفرت نہیں کر سکتی۔ اس کی موت اس کی تمام ناراضیوں اور غصے کو ختم کر گئی تھی، اور ان 15 دنوں کے بعد واحد چیز جس کا وہ سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھی اور جس کی وہ توقع نہیں کر رہی تھی، وہ جنید کی طرف سے شادی کے بارے میں دوبارہ بات تھی۔ وہ اس وقت شادی کے بارے میں بالواسطہ طریقے سے بات کرتے ہوئے یقیناً یہ جتا رہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود اس رشتے کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس وقت اس ایک سوال کے علاوہ اور کچھ پوچھنا نہیں چاہتی تھی۔ سب کچھ جاننے کے بعد بھی آپ کیوں اس رشتے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں؟ اس نے جنید کے خاموش ہو جانے کے بعد سوال کیا۔ وہ اس کے عقب میں استادہ درختوں پر بیٹھے پرندوں پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ علیزہ کو لگا جیسے اس نے اس کی بات نہیں سنی ہو۔ اس نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ اس بار جنید نے درختوں سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ پتہ نہیں۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ شاید اسی لیے کہ میں تمہارے ساتھ بہت زیادہ انوالو ہو چکا ہوں، یا پھر شاید اسی لیے کہ میں عمر کی فیملی سے اپنا تعلق ختم نہیں کرنا چاہتا۔ بہت کچھ تو پہلے ہی ختم ہو چکا ہے، جو باقی رہ سکتا ہے میں اسے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ بڑے ہموار لہجے میں کہہ رہا۔ یا پھر شاید اسی لیے کہ یہ عمر کی خواہش تھی، اس نے جنید کے چہرے پر نظریں جما کر کہا۔ جنید نے اس کی بات کی تردید کی، نہ اعتراف۔ وہ ایک بار پھر ان درختوں پر بیٹھے پرندوں کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ میں نے پہلی بار عمر سے تمہارا ذکر تب سنا جب وہ سول سروس کا امتحان دینے آیا تھا۔ وہ کچھ دنوں کے لیے ہمارے گھر ٹھہرا تھا۔ علیزہ نے جنید کو جیسے بڑبڑاتے دیکھا۔ وہ اب بھی ان پرندوں کو دیکھ رہا تھا۔ علیزہ کو یاد تھا وہ اس کی ناراضی کی وجہ سے گھر چھوڑ کر کسی دوست کے ہاں شفٹ ہو گیا تھا، مگر وہ اس دوست کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ پھر کچھ دنوں بعد اس نے کہا کہ وہ واپس گرینی کے پاس جا رہا ہے۔ میں ناراض ہو گیا۔ تب اس نے مجھ سے معذرت کی اور مجھے تمہارے بارے میں بتایا کہ کس طرح تم اس کے وہاں جانے پر خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہی ہو، اور پھر تم دونوں کے درمیان دوستی ہو گئی تھی۔ میں نے عمر کی ان باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ میں سمجھتا تھا وہ اس لیے زیادہ ہمدردی محسوس کر رہا ہے کیونکہ وہ خود بھی ایک بروکن فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ علیزہ اسے دیکھتی رہی۔ پھر اس کی باتوں میں اکثر تمہارا ذکر ہونے لگا۔ میں نے تب بھی غور نہیں کیا۔ تمہاری اور اس کی عمر میں بہت فرق تھا۔ تم ایک ٹین ایجر تھی
जबकि उमर बहुत मैच्योर था। मेरा ख्याल था वो तुम्हारे साथ एक ही घर में रह रहा है और फिर तुमसे हमदर्दी भी करता है, इसीलिए गैर महसूस तौर पर तुम भी उसके करीब आने लगी हो। मैंने तब भी ये अंदाजा लगाने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे लिए उसके दिल में किस तरह फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। जुनैद ने अब अलीजा को देखते हुए कहा, मैं तब भी यही समझता रहा कि उसकी सबसे ज्यादा दोस्ती जॉडी के साथ है और अगर कभी उसने शादी की तो वो उसी से करेगा। वो दोनों हम उम्र थे और बहुत लंबे अरसे से एक दूसरे के साथ थे। उन दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी थी। मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही समझता। आपने ठीक समझा, अलीजा ने धीमी आवाज में पहली बार उसकी गुफ्तगू में मुदाखलत की। वो जोडत ही से मोहब्बत करता था और वो उसी से शादी करना चाहता था। मैं समझता था। जुनैद ने उसकी बात सुनकर भी अपनी बात जारी रखी। मैं उमर के बहुत करीब हूँ, उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, उसे बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। ऐसा नहीं था। जुनैद अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। ये मेरी सिर्फ खुशफहमी थी। मैं या उसका कोई भी दोस्त उसके अंदर तक नहीं झांक सका। उसने हमें इसका मौका ही नहीं दिया। हम उसे सिर्फ उतना ही जान सके जितना वो चाहता था। और ठीक कह रहा था। अलीजा को इस बारे में कोई शुबा नहीं था। बाद में उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूं, तब फॉरेन सर्विस में अपनी पहली पोस्टिंग पर जा और मैं लंदन में आर्किटेक्चर की मजीद तालीम के लिए। तुम उस वक्त ग्रेजुएशन कर रही थी। अलीजा को याद आया। ये वो वक्त था जब उसे मुकम्मल तौर पर यकीन हो चुका था कि सिर्फ वही नहीं, उमर भी उससे मोहब्बत करता है। जब वो ये समझने लगी थी कि बहुत जल्द वो उसे प्रपोज कर देगा और वो इस वक्त क्या सोच रहा था। जुनैद को देखते हुए उसकी आंखों में नमी उमड़ने लगी। मेरा उस वक्त शादी का कोई इरादा नहीं था और उमर को भी इस बारे में कोई जल्दी नहीं थी। तुम अपनी तालीम खत्म करो, पाकिस्तान आओ, फिर तुमसे इस बारे में मजीद बात करूंगा। लेकिन ये बात तय है कि तुम्हारी शादी अलीजा के साथ ही होगी, वो मुझसे कहता था। अगर वो मुझे अच्छी लगी तो, उसके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग हो सकी तो मैं हर बार उससे कहता और वो यकीन दिलाता। अलीजा और तुम्हें अच्छी ना लगे, जेम ऑफ अ पर्सन जुनैद, जेम ऑफ अ पर्सन। जब 20-30 साल तुम उसके साथ गुजार लोगे तो फिर तुम मेरे एहसानमंद होगे कि मैंने दुनिया की सबसे बेहतरीन लड़की के साथ तुम्हारी शादी करवा दी। मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये महसूस होने लगा कि मैं उमर को इनकार नहीं कर सकता। वो अपनी बात मनवा लिया करता था। कुछ सालों के बाद जब घर में मेरी शादी का जिक्र होने लगा तो उमर ने मुझे तुमसे मिलवाया, मगर ये कहकर कि मैं तुमको उमर से अपनी दोस्ती के बारे में ना बताऊं। मुझे तब भी कोई तजस्सुस नहीं हुआ। अगर इस पूरे दौरानिये में मुझे एक बार भी ये ख्याल आ जाता कि वो खुद तुम में इंटरेस्टेड है तो मैं किसी कीमत पर भी तुमसे शादी करने का ना सोचता, या तुम मुझे बता देती तो तब भी सारे मामले के बारे में उमर से बात करता। तुम्हारा इंकशाफ मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था और इस शौक से बाहर आने में मुझे कई साल लगेंगे। उमर मुझ में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं था। मैंने आपको बताया था, वो सब सिर्फ मेरी खुशफहमी थी। अलीजा ने जैसे खुद कलामी की। जो भी था, जरूर जानता हूँ कि ये सब कुछ बहुत तकलीफ दे था। जुनैद खामोश हो गया। अलीजा ने उसकी आंखों में पानी तैरते हुए देखा। मुझे अभी भी ये यकीन नहीं आता कि वो जिंदा नहीं है। जिंदगी में पहली बार 2 हफ्ते गुजर गए हैं और मैं उससे राब्ता नहीं कर सका, मिल नहीं सका, न उसने मुझसे राब्ता किया। वरना हम लोग किसी न किसी तरह एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते थे, चाहे मुल्क में होते या बैरून मुल्क। वो उसका चेहरा देखती रही। मैंने उमर से बढ़कर जेन्युइन आदमी जिंदगी में नहीं देखा। हम दोनों के दरमियान बहुत से इख्तलाफात होते थे। वो बहुत तसल्लुत पसंद था, मैं ऐसा नहीं था, मगर इसके बावजूद हमारे दरमियान तमाम इख्तलाफात खत्म करने में पहल वही किया करता था। छोड़ो, कोई और बात करते हैं। वो कुछ झगड़ा शुरू करता, फिर यकदम मौजू बदल देता और मैं वाकई मौजू बदल देता। मुझे अब भी यही लग रहा है कि उसने ऐसा ही किया है। उसकी मौत से कुछ देर पहले उससे मेरी बात हुई थी। मैं तुम्हारे सिलसिले में उससे तफसीली बात करना चाहता था। वो दमसाते जुनैद को देखती रही। वो शायद जान गया था कि मैं तुम्हारे सिलसिले में उससे बात करना चाहता हूँ। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे रात को फोन करेगा और वो रात अब कभी नहीं आएगी। वो हमेशा यही किया करता था। जो बात नहीं बताना चाहता था वो नहीं बताता था। जुनैद के लहजे में शिकस्त खोर्दी थी।
मैं अब किसी मामले की तहकीक नहीं करना चाहता। मैं बस इस एक रिश्ते को कायम रखना चाहता हूँ जो उसकी ख्वाहिश थी, मगर मैं इस ख्वाहिश के एहतराम में ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम्हारी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, किसी पछतावे के बगैर, किसी बोझ के बगैर। मैं चाहता हूँ हम अपनी तमाम पुरानी बातों को भुला दें, जख्मों को कुरेदने की कोशिश न करें, जिंदगी को आज से शुरू करें। कुछ वक्त लगेगा मगर फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने चंद दिन पहले लाहौर में मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूं, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने उमर की बात ना मानी हो। मैं किसी तरह भी तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अलीजा ने उसे इस जुमले के बाद कुर्सी से उठते और लॉन से निकलते देखा। वो अपनी आंखों को मसलने लगी। वो और जुनैद एक ही शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार थे, सिर्फ नौयत मुख्तलिफ थी, ताल्लुक की गहराई में कोई फर्क नहीं था। लॉन में छाए सकूत को परिंदों की चहचहाहट तोड़ रही थी। बहुत दूर जुनैद गाड़ी को रिवर्स करते हुए ड्राइववे से निकाल रहा था। उसने 1 साल के दौरान पहली बार जुनैद की बातों में विरक्ति महसूस की थी। वो बहुत हमवारी और रवानी से बात किया करता था। आज पहली बार उसकी गुफ्तगू में दोनों चीजें मफकूद थीं। वो खुद उससे कुछ भी कहने के काबिल नहीं थी। आखिर जुनैद इब्राहिम से क्या बात की जा सकती थी? ताज़ियत की जाती, अफसोस किया जाता, कौन किससे करता? उमर की मौत ने दोनों को एक ही तरह मुतासिर किया था। उमर बिल्कुल गलत कहता था कि उसकी मौत से किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी मौत ने बहुत सी जिंदगियों को वक्ती तौर पर एबनॉर्मल कर दिया था। उनमें से एक जिंदगी उसकी थी, दूसरी जुनैद की, और तीसरी दर्द की एक लहर उसके अंदर से गुजरी, तीसरी जोडित की। उसने सोचा। पोर्च में जलने वाली लाइट की रोशनी में उसने जोडित को जुनैद की गाड़ी से उतरते देखा। वो टी शर्ट और ट्राउजर में मलबूस थी, नानो से आगे थी। वो अब जोडित से मिल रही थी। जुनैद मुलाजिम की मदद से गाड़ी से उसका सामान उतरवा रहा था। अलीजा नानो से चंद कदम पीछे खड़ी उसे देखती रही। जिंदगी में पहली बार जोडित को देखकर उसे कोई गुस्सा, कोई हसद महसूस नहीं हुआ। जोडित नानो से मिलने के बाद उसकी तरफ बढ़ रही थी, फिर वो उसके मुकाबिल आकर खड़ी हो गई। अलीजा ने एक कदम आगे बढ़ाया और जोडित के कंधों पर हाथ रखते हुए उसके गाल को नरमी से चूम लिया। जोडित ने जवाबन उसे अपने साथ लिपटा लिया। दोनों के दरमियान किसी लफ्ज का तबादला नहीं हुआ था। जोडित के अंदाज में बहुत गर्मजोशी थी, वालिहानापन था, बेइख्तियारी थी, और क्या था वो जान नहीं सकी। मगर जब वो उससे अलग हुई तो उसने जोडित की आंखों में आंसू देखे। अलीजा ने उससे नजरें चुरा ली। उसका हाथ थामकर उसने समीना से उसको मुतारिफ करवाया। ये मेरी मम्मी है जोडित। जोडित समीना से हाथ मिलाने लगी। जुनैद तब तक मुलाजिम के हाथ जोडित का सामान अंदर भिजवा चुका था। वो खुद भी लाउंज में चला गया। आप कपड़े चेंज कर लें, मैं खाना लगवाती हूँ, अलीजा ने जोडित के साथ अंदर जाते हुए कहा। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी, फ्लाइट के दौरान खा चुकी हूँ, मैं इस वक्त सिर्फ सोना चाहती हूँ, जोडित ने कदरे माजरत खाना अंदाज में कहा। आप जैसे चाहें, अलीजा ने सर हिला दिया। उसे अंदाजा था कि इस वक्त वाकई बहुत देर हो चुकी थी। जुनैद लाउंज के दरमियान खड़ा था। जोडी, अब सुबह मुलाकात होगी, उसने जोडित से कहा, और उसके बाद समीना के साथ बातें करता हुआ बाहर निकल गया। जोडित चंद मिनट नानो के साथ लाउंज में खड़ी बातें करती रही। फिर नानो ने अलीजा को उसके कमरे में ले जाने के लिए कहा। अलीजा उसे लेकर उस कमरे में चली आई जहां उमर ठहरा करता था। इससे पहले जोडित कभी उमर के कमरे में नहीं ठहरी थी। उसे हमेशा फर्स्ट फ्लोर पर ठहराया जाता। इस बार अलीजा ने उसे उमर के कमरे में ठहराया था। वो अलीजा के साथ उस कमरे में दाखिल होने के बाद आगे नहीं बढ़ी, वहीं खड़ी रही। अलीजा ने आगे बढ़कर खिड़कियों के पर्दे बराबर कर दिए। फिर उसने पलट कर देखा। जोडित अब भी वहीं खड़ी थी, यूं जैसे वो वहां उस कमरे में किसी की मौजूदगी को महसूस करने की कोशिश कर रही हो। अलीजा जानती थी वो किसके वजूद का एहसास करना चाहती थी। वो उमर का कमरा था, और जोडित भी ये बात जानती थी। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दें, पानी मैंने रखवा दिया है, फ्रिज में कुछ खाने की चीजें भी हैं, फिर भी अगर किसी चीज की जरूरत हो तो। अलीजा उसके पास चली आई। नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है, जोडित ने उसे देखते हुए कहा। ओके, फिर आप आराम करें, गुड नाइट। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन अचानक ही जोडित ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे पास रहो अलीजे, मैं आज रात यहाँ सो नहीं सकूंगी। उसका चेहरा देखे बगैर भी जानती थी कि जोडित की आवाज भर्रा रही है। उसकी आंखें अब पानी से भर रही होंगी, और वो इसी एक लम्हे से खौफजदा थी। उसे अलीजे उमर कहा करता था। जोडित के मुंह से ये लफ्ज सुनकर किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भेजा। अब कोई भी उसे इस नाम से पुकार सकता था, बस वो एक शख्स नहीं पुकार सकता था जिसका नाम उमर जहांगीर था।
اس نے گردن موڑ کر جورج کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی۔ جورج جواب میں نہیں مسکرائی، وہ بس آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی تکلیف میری تکلیف سے بہت زیادہ ہے۔ اس نے اس آدمی کو کھویا ہے جو اس کا تھا، جسے وہ حاصل کرنے ہی والی تھی، اور میں نے اس شخص کو کھویا ہے جو کبھی میرا نہیں تھا، نہ کبھی ہو سکتا تھا۔ جورج کی پشت پر اپنے بازو پھیلاتے ہوئے اس نے گیلی آنکھوں کے ساتھ سوچا، میں آپ کے پاس ہی ہوں، آپ مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ اس رات وہ دونوں جاگتی رہیں۔ عجیب تعلق تھا جو اس نے جورج کے ساتھ محسوس کیا تھا۔ جورج عمر کے بارے میں بتاتی رہی، وہ پہلی بار عمر سے کس طرح ملی، کہاں ملی، ان کی دوستی کیسے ہوئی، یہ دوستی کس طرح گہری ہوتی گئی۔ علیزہ چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اگر کوئی سوال وہ جورج سے کرنا چاہتی تھی تو وہ صرف یہ تھا، عمر کو اس سے محبت کب ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی، اور وہ جانتی تھی وہ اس سے یہ سوال کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنے دل کو ایک بار پھر کسی نچتر سے کٹتا ہوا محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے پاس جورج کو بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کوئی راز، کوئی بات، کچھ بھی نہیں۔ جورج سب کچھ جانتی تھی۔ عمر کے جہانگیر سے تعلقات کیسے تھے، عمر کے زارا کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، عمر ان دونوں کے علیحدگی سے کتنا ڈسٹرب ہوا تھا، اسے کیا چیزیں خوش کرتی تھیں، کیا پریشان کرتی تھیں، سب کچھ، وہ سب کچھ جانتی تھی، اور جورج کا چہرہ دیکھنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ فجر کی اذان کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے عمر سے صرف ایک شکایت تھی، اس نے جورج کو کہتے سنا۔ وہ بیڈ پر پاؤں اوپر کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ علیزہ جاتے جاتے رک گئی۔ جورج کی آنکھیں متورم تھیں، وہ اس وقت جیسے کسی ٹرانس میں آئی ہوئی تھی۔ اس نے میرا خیال رکھا، اس نے میری پرواہ کی، اس نے میری خواہشات کا احترام کیا، اس نے میرے ساتھ ہر چیز شیئر کی، بس اس نے مجھ سے محبت نہیں کی۔ علیزہ نے مڑ کر اسے دیکھا، جورج اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ محبت اس نے تم سے کی، وہ اب تھکے ہوئے انداز میں مسکرا رہی تھی۔ تمہاری منگنی والی رات میں اسلام آباد میں تھی، اس نے مجھے رات 2 بجے فون کیا۔ وہ بہت زیادہ ڈپریس تھا، مجھے بہت حیرانی ہوئی، کم از کم اس رات اسے ڈپریس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس رات تمہاری اور جنید کی منگنی تھی، اسے بہت خوش ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اسے یہ کہہ دیا۔ وہ بہت دیر خاموش رہا، اتنی دیر کہ مجھے لگا فون ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، میں نے آج اسے بہت رلایا ہے، بہت زیادہ، میں نے آج اسے بہت جھڑکا ہے۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، وہ جنید کے ساتھ منگنی توڑنا چاہتی ہے، وہ کہتی ہے وہ میرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ میں نے آج اسے بہت جھڑکا ہے، اسے بہت رلایا ہے، لیکن میں اس کے پاس سے اٹھ کر آیا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے میں تو اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ مجھے تو اس سے بہت محبت ہے، میں کیسے اسے جنید کے ساتھ دیکھ سکوں گا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اس نے اس رات میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ میں تو تب تک یہی سمجھتی رہی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن میں اگلے دن لاہور چلی آئی۔ میں نے اسے کہا، تم علیزہ کی بات مان لو، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اسے شادی کر لو۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا وہ پچھلی رات شراب پی رہا تھا، شاید شراب کے نشے میں اس نے کوئی فضول بات کی ہوگی، ورنہ ایسی بات نہیں ہے، مگر میں جان گئی تھی وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، یا شاید ویسی محبت نہیں کرتا تھا جیسی تم سے کرتا تھا۔ علیزہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی، زرد چہرے کے ساتھ۔ پھر اس نے مڑ کر کمرے پر ایک نظر ڈالی۔ وہ وہیں کہیں تھا، اس کی راکنگ چیئر اس طرح جھولتی محسوس ہوئی جیسے وہ جھلایا کرتا تھا، ہر چیز پر جیسے اس کا لمس موجود تھا، ہر طرف جیسے اس کی آواز گونج رہی تھی، وہی دھیما ٹھہرا گہرا لہجہ، وہی پرسکون دل کے کہیں اندر تک اتر جانے والی آواز، علیزے، اور پھر وہی کھلکھلاتے ہوئے بے اختیار کہے۔ اس کمرے میں سب کچھ زندہ تھا، وہمہ عکس بن گیا تھا اور عکس حقیقت بن کر اس کے ارد گرد پھرنے لگا تھا۔ اس نے مڑ کر ڈریسنگ ٹیبل کو دیکھا، جورج شاید اسے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے چلی آئی، ایک سایہ اس کے ذہن میں لہرایا، ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں یکدم کوئی نظر آنے لگا۔ اسے اپنی گردن پر، بالوں پر ایک فوار سی پڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں علیزے کو جوائے دوں گا، پھر اٹرنیٹی،
اس نے مڑ کر جورت کو دیکھا. اس کے ہونٹ کپکپا رہے تھے. وہ کچھ دیر جورت کو دیکھتی رہی، پھر لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر چلی گئی. یہیں پہ ہمارے امر بیل ناول کی اینڈنگ ہو چکی ہے، اور میں نے نہ جانے کتنی ہی بار اس ناول کو ریڈ کیا ہوا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید میں اب کی بار ریڈ کروں گی نا تو مجھے رونا نہیں آئے گا، اور لٹرلی مجھے اس وقت بہت رونا آ رہا ہے، اور میں اپنی فیلنگز ایکسپریس ہی نہیں کر سکتی اس ناول کے لیے. میرے فیورٹ لسٹ میں ٹاپ سے بھی کہیں اوپر کی چیز ہے یہ. آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے کامنٹس میں بتائیں، فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں. اور جو عمر جہانگیر کہتا ہے کہ اس کی موت سے کسی کو فرق نہیں پڑنا تھا، اور علیزہ کہتی ہے کہ 3 لوگوں کو پڑا. نہیں 3 لوگوں کو نہیں پڑا، پورے پاکستان کو فرق پڑا ہے. اور میں بھی اگر کوئی انڈیا میں سن رہا ہو، کوئی کسی اور کنٹری میں جو اردو سمجھتے ہوں، انہیں بھی اسی طرح سے اس کی موت سے فرق پڑا ہوگا. ون آف دی بیسٹ ناول بائی عمیرہ احمد. اور نیکسٹ ناول کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد آ جاؤں گی. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں اب اپنے رونے کا سیشن پورا کرتی ہوں. آپ لوگوں کو آ رہا ہے تو آپ بھی روئیں، نہیں آ رہا تو انجوائے کریں لائف کو. اوکے جی، اللہ حافظ.